அன்பானவர்களே, இன்று இரவு வேளையிலே ஆகார் என்கிற பெண்மணியின் சரித்திரத்திலிருந்து சில சம்பவங்களை சத்தியங்களை தியானிக்க இருக்கின்றோம். प्रिय लोगों, आज इस रात के कन्वेंशन की सभा में आजिरा के बारे में हम कुछ शब्दों को सुनने वाले हैं. விசேஷமாய் இந்த ஆகாருடைய வாழ்வில் நடந்த ஒரு ஆச்சரியமான சம்பவம், विशेषित तौर से ये आजिरा के जीवन में जो हुआ था उसी घटना के बारे में हम ध्यान करें. அவள் ஒரு துருத்தி தண்ணீரோடு சென்ற பொழுது கர்த்தர் அவளுக்கு ஒரு துறவு நிறைந்த தண்ணீரை கொடுத்தார். ये आजिरा शुरुआत में एक तैली में जो पानी लेकर गई, पर परमेश्वर उन्हें एक कुएं का पानी का हकदार बनाया. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. ஒரு துருத்தி தண்ணீர் காலியாகி தாகத்தால் வாடின அவளுக்கு एक तैली की पानी जो खत्म होकर जो प्यास से तड़प रही थी उसके लिए தேவன் ஒரு துறவையே கொடுத்தார். परमेश्वर एक ऐसे कुआं को, यानी कि जो पानी की सोता भरा हुआ कुआं को दिया था. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. கர்த்தர் நல்லவர், ஆச்சரியமானவர். परमेश्वर अच्छा है, वो भला करते हैं. இந்த ஆகார் என்பவள் யார்? ये आजिरा कौन है? இவள் எகிப்து தேசத்தை சேர்ந்தவள். ये मिस्र देश की रहने वाली थी. எகிப்து தேசத்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனுடைய அரண்மனையிலே வேலைக்காரிகளில் ஒருத்தியாக இருந்தவள். मिस्र की राजा फिरौन की राजमहल में कर्मचारियों के रूप में एक रहती थी. ஆபிரகாம் என்கிற தேவ மனிதன் ஒரு சூழ்நிலையில் எகிப்துக்கு பயணம் செய்தார். आबिराम जो है एक परिस्थिति में मिस्र में यात्रा किया था. அவர் எகிப்துக்கு போன வேளையில் அவருடைய மனைவியாகிய சாராய் மிகவும் அழகுள்ளவளாய் இருக்கிறாள் என்பதை பார்வோன் அறிந்தான். तो जब मिस्र में अब्राहम गया था तो उनका पत्नी सारा को उसका राजा ने सुंदर पाया. எனவே அந்த ராஜாவாகிய பார்வோன் இந்த சாராளை தனக்கு மனைவியாக்கி கொள்ள விரும்பினான். तो इस वजह से राजा फिरौन ने इसको अपना पत्नी बनाने की विचार किया. அவளை பிடித்து தன் அரண்மனைக்கு கொண்டு சென்று விட்டான். उसको पकड़कर वो अपने राजमहल में ले गया. அதற்கு பதிலாக ஆபிரகாமுக்கு அவன் சில பரிசு பொருட்களை கொடுத்தான். उसकी बदले में राजा ने अब्राहम को कुछ तोहफा उनको दिया. அதில் ஒரு பரிசு பொருள் தான் சில வேலைக்காரிகள். उसमें से एक तोहफा है कुछ नौकरानियां. அதில் ஒருத்தி ஆகார். तो उस नौकरानियों में से एक है ये आजिरा. இவ்வண்ணமாக ஆகார் ஆபிரகாம் குடும்பத்துக்குள் வீட்டுக்குள் வந்தாள். तो इस प्रकार आजिरा जो है अब्राहम के परिवार में आकर शामिल हुआ. முதலாவது பார்வோன் சாரா என்பவள் ஆபிரகாமினுடைய தங்கை அல்லது சகோதரி என்று நினைத்து அவளை தனக்கு மனைவியாக்கி கொள்ள விரும்பினான். तो ஆபிரகாமுடைய சகோதரி என்று நினைத்து அவளை பார்வோன் ராஜா தனக்கு மனைவியாக்கி கொள்ள राजा फिरौन ने ये इसको साराई को अब्राहम का बहन करके सोचकर उसको अपना पत्नी बनाना चाहा. ஆனால் பிறகு இவள் ஆபிரகாமின் மனைவி என்று அறிந்தவுடனே அவளை விடுவித்து விட்டான். बाद में ये सारा यानी कि अब्राहम का पत्नी करके जैसा फिरौन राजा ने जाना तो उसको छोड़ दिया. அப்பொழுது ஆபிரகாம் திரும்ப தன்னுடைய தேசத்துக்கு வந்தான். तब अब्राहम फिर से अपने देश में आया. இந்த ஆகாரும் இந்த வீட்டிலே வேலைக்காரியாக சேர்ந்து கொண்டாள். तो साथ ही आजिरा भी उन्हीं की घर पे एक नौकरानी की रूप में रह गई. ஆபிரகாமுக்கும் சாராய்க்கும் பிள்ளை இல்லாமல் இருந்தது. तो अब्राहम और सारा दोनों को वो बच्चे नहीं, संतान की आशीष नहीं थे. ஆகவே சாராய் தன் கணவனாகிய ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னாள், நமக்கு பிள்ளை இல்லை அல்லவா, எனவே நீங்கள் ஆகாரை மறுமனையாட்டியாய் சேர்த்து கொள்ளுங்கள். तो अपना पति अब्राहम से साराई ने कहा कि अब हमें तो बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए हमारा नौकरानियों में से आजिरा को आपका अपना पत्नी बना लो. அப்பொழுது ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் இஸ்மவேல் என்கிற ஒரு பிள்ளை பிறந்தான். तो तब अब्राहम
ஆபிரகாமுக்கும் ஆகாருக்கும். अब्राहम और आजिरा को इस्माइल करके एक बेटा जन्म हुआ. அப்போ இந்த இஸ்மவேல் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது, ஆகார் கர்ப்பவதியாய் இருக்கும் பொழுது, जब इस्माइल यानी कि गर्भ यानी कि आजिरा जब गर्भवती थी, அந்த ஆகார் என்கிற வேலைக்கார பெண்மணி எஜமாட்டியாகிய சாராளை மதிக்காமல் செயல்பட தொடங்கினாள். जब आजिरा जो नौकरानी थी, तो अब वो जब गर्भवती हुई तो अपने मालकिन को यानी कि स्वामी अपना आजिरा को वो तुच्छ जानने लगी. ஆகவே சாராள் மிக மனவருத்தப்பட்டாள். तो इस वजह से सारा जो है बहुत मन में खेदित हुआ. அபிரகாமிடத்தில் தன் வருத்தத்தை தெரிவித்தாள். तो अब्राहम के पास अपने मन की दुखों को बताया. அப்ப ஆபிரகாம் சொன்னாள், அவள் உன் மறுமனையாட்டி, அவள் உன் வேலைக்காரி, நீ இஷ்டத்துக்கு நடத்தலாம் என்று. तो अब्राहम ने बोला, वो तो हमारी नौकरानी है, चाहे तो आप अपना मन मर्जी उसको अगवा यानी कि उसको उसके साथ कर सकते हैं, यानी कि उसको आप चला सकते हैं बोलकर बताया. அப்பொழுது சாராள் ஆகாரை கடினமாக நடத்தினாள். तब सारा ने आजिरा को कठिनता से उसे चलाया. ஒரு கட்டத்தில் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அந்த ஆகார் கர்ப்பவதியா இருக்கும் பொழுதே வீட்டை விட்டு ஓடி விட்டாள். तब एक बार वो मन में दुखित होकर जब गर्भवती थी तो घर से वो भाग गई. அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர் ஆகாரை வனாந்தரத்திலே சந்தித்தார். तब परमेश्वर की स्वर्गदूत ने आजिरा को जंगल में निर्जल भूमि में मिला. அவளுக்கு ஆறுதல் வார்த்தைகளை கூறினார். तो उनको स्वर्गदूत ने तसल्ली की बातों को कही. அவளை திரும்பவும் சாராளிடத்தில் போய் அடங்கி இரு என்றும் எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தார். उनको दोबारा वहां पे अपना मालकिन के पास जाकर शांत से रहने के लिए उनको चेतावनी दिया गया. ஆகார் அந்த கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து திரும்பி வந்தாள். तो आजिरा भी परमेश्वर की उन शब्दों को आज्ञा मानकर लौट कर आई. அப்பொழுது அவள் தேவனுக்கு ஒரு பெயர் போட்டாள், நீர் என்னை காண்கிற தேவன். तब उन्होंने परमेश्वर को एक नाम दिया कि तू मुझे देखने वाला परमेश्वर है. இது ஆதியாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. ये उत्पत्ति 16वां आयत में हम पढ़ते हैं. ஆகவே அவள் அந்த எந்த துறவின் பக்கத்தில் வைத்து கர்த்தருடைய தூதன் அவளை சந்தித்தாரோ அந்த துறவுக்கு लगाई रोई என்று பெயரிட்டாள். जिस कुआं के पास परमेश्वर ने उससे मिला तो उस कुआं को लगाई रोई करके एक नाम रखा. அதோட அர்த்தம் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்பதாகும். इसका अर्थ यह है कि तू मुझे देखने वाला परमेश्वर है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. திரும்ப இந்த ஆபிரகாம் வீட்டிலே ஆகார் இருந்தாள். तो फिर से अब्राहम का घर में ये आजिरा रही. அப்பொழுது அவள் பிள்ளை பெற்றாள். तब वो बच्चे जनी இஸ்மவேல் பிறந்தான். इस्माइल जन्म हुआ. அதுக்கு பிறகு சுமார் 14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, उसके बाद 14 साल के बाद அந்த ஆபிரகாம் சாராளுக்கு ஈசாக்கு என்ற ஒரு மகன் பிறந்தான். तो अब्राहम सारा ये परिवार में इसहाक करके एक बच्चे जन्म हुआ. அந்த ஈசாக்கு பிறக்கும் பொழுது ஆபிரகாமுக்கு 100 வயது, சாராளுக்கு 90 வயது. तो इसहाक जब जन्म हुआ तो साराई को 90 उम्र थे और अब्राहम को 100. அப்போ இந்த இஸ்மவேல் என்கிறவன் ஒரு இளைஞனாக இருந்தான். तब इस्माइल जो था पहले का बेटा, वो जवान लड़का था. அவன் இந்த ஈசாக்கை परियासम பண்ணினா. तब वो जेठा पुत्र होने के नाते इसहाक को वो तुच्छ व्यवहार किया. அதை பார்த்த உடனே மறுபடியும் சாராளுக்கு மன கஷ்டம் உண்டாயிற்று. इसे देखकर फिर से साराई का मन में दुख हुआ. இந்த அடிமை பெண்ணும் அவள் மகனாகிய இஸ்மவேலும் இனி என் வீட்டில் இருக்க கூடாது என்று ஆபிரகாமிடத்தில் முறையிட்டாள். ये गुलामी की नौकरानी और उनका बेटा यहाँ दोबारा यहाँ पर मेरे हम लोग के साथ रहना नहीं है करके साराई ने निर्णय लिया. அப்பொழுது ஆபிரகாமும் வேறு வழி இல்லாமல் தன் மறுமனையாட்டியாகிய ஆகாரையும் தான் பெற்ற பிள்ளையாகிய இஸ்மவேலையும் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிவிட்டார். तो अब्राहम ने दूसरा कोई उपाय नहीं होने के वजह से
अपना बेटा इस्माइल और उनका आजिरा को घर से निकाल दिया। வெளியே அனுப்பும் பொழுது கொஞ்சம் அப்பமும் கொடுத்து ஒரு துருத்தி நிறைய தண்ணீரும் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டான். जब बाहर बेचते समय उनको थोड़ा सा रोटी और थोड़ा पानी देकर वहां से उनको बेच दिया गया। அந்த தாய் ஆகிய ஆகார் தன் பிள்ளையாகிய இஸ்மவேலையும் அழைத்து கொண்டு அந்த வனாந்தரத்திலே அலைந்து திரிந்தாள். वो अपना बेटा को इस्माइल को लेकर उस जंगल में इधर उधर घूमे फिरे। அந்த துருத்தியில் இருந்த தண்ணீர் செலவழிந்து போயிற்று. उसी जो तैली में पानी वो भरकर रखे थे वो भी खत्म हो चुका था। பிள்ளை சாகிற நிலைமைக்கு ஆகி கொண்டிருக்கிறது. अब बच्चे मरने की अवस्था में हैं। இவள் தண்ணீரை தேடி தேடி பார்த்தால் எங்கும் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை. कई पानी को इधर उधर ढूंढने लगी पर कहीं इन्हें पीने लायक पानी नहीं मिला। எனவே இவள் பிள்ளை சாகிறதை நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அதை விட்டு விலகி தனியே போயிருந்து விட்டாள். तो इसे बेटा जो मरते हुए मैं देखना नहीं चाहूंगी करके वहां से थोड़ा दूर होकर वो रोने लगी। அப்பொழுது மறுபடியும் கர்த்தர் அவளை சந்தித்தார். तब दोबारा परमेश्वर आजिरा से मिला। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மறுபடியும் ஆறுதல் வார்த்தைகளை அவளுக்கு பேசினார். दोबारा तसल्ली की बातें उनको बताया। அவளுடைய கண்களை அவர் திறந்தார். उनकी आंखों को उन्होंने खुला। அவள் ஒரு தண்ணீர் துறவை கண்டாள். वो वहां पर एक पानी की सोता उन्हें मिला। அந்த துறவில் போய் தண்ணீர் குடித்து இருவரும் பிழைத்துக் கொண்டார்கள். उसी पानी की सोता से पानी की प्यास बुझाकर वे दोनों जीवित बच गए। ஒரு துருத்தியில் கணவன் கொடுத்து அனுப்பிய தண்ணீர் தீர்ந்து போயிற்று. एक तैली में जब पति ने दिया हुआ उसका प्यास की पानी उसको खत्म हो गया। ஆனால் கர்த்தரோ அவளுக்கு ஒரு தண்ணீர் துறவையே கொடுத்து அவளை ஆதரித்தார். लेकिन परमेश्वर उसके लिए एक पानी की सोता की कुआं देकर उन्हें परमेश्वर तसल्ली दिए। இந்த ஆகாரின் சுருக்கமான சரித்திரத்தை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். अब मैं आजिरा के बारे में एक छोटा चरित्र को मैंने बताया। இப்பொழுது இவளை பற்றின சில விஷயங்களை நாம் கவனிப்போம். अभी इस आजिरा के बारे में कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। இந்த ஆகார் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனால் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டவள். ये आजिरा जो है मिस्र की राजा फिरौन की एक तोहफा थी। அப்ப இந்த ஆகாருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். ये आजिरा के जीवन को यदि आप ध्यान करके देखेंगे, ஒரு அடிமை, एक गुलाम, எந்த சொந்த உரிமையும் அவளுக்கு இல்லை. उसके लिए कोई भी मतलब कोई भी उसका हक नहीं था। அவள் பார்வோன் ராஜாவுடைய வீட்டிலே அரண்மனையிலே ஒரு வேலைக்காரி. वो फिरौन राजा के राजमहल में एक नौकरानी थी। அவன் திடீரென்று ஆபிரகாமுக்கு பரிசாக கொடுத்து விட்டான். उसे अचानक फिरौन राजा ने अब्राहम के लिए तोहफा के रूप में दे दिया। அந்த பெண்ணின் வாழ்க்கை எவ்வளவு பரிதாபமான வாழ்க்கை. तो सोच कर देखें वो उस औरत की जीवन कितना मुश्किल की थी। எங்கிருந்தோ ஒரு அந்நியன் வந்தான். कहां से एक पराय व्यक्ति ने आया। அவனுடைய மனைவி சாராளை இந்த பார்வோன் ராஜா தனக்கு மனைவியாக்கி கொள்ள ஆசைப்பட்டான். तो उनके पत्नी साराय को फिरौन अपना घर में रखना चाहा। அதற்கு பரிசாக இந்த வேலைக்கார பெண்ணை கொடுத்து விட்டான். उनकी बदले में तोहफा के रूप में अपने घर से उस नौकरानी को उनके लिए दे दिया। எந்த உரிமையும் இல்லாத ஒரு பெண்மணி. तो उसके लिए कोई हकदार नहीं, आजिरा कोई हकदार नहीं थी। நீ இந்த ஆபிரகாம் வீட்டுக்கு வேலைக்காரியை போகிறாயா என்று ராஜா கேட்கவே இல்லை. तो उनसे ये भी पूछा नहीं गया कि तो ये अब्राहम के घर में जाऊंगी कि नहीं। இன்றைக்கும் இது போல சங்கடமான நிலையில் நீங்கள் யார் இருக்கிறீர்கள்? आज भी यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से बिना हक के इस प्रकार व्यवहार किए जाने वाले कुछ लोग यहाँ पर अगर है क्या? ஒரு உரிமையும் ஒரு மதிப்பும் இல்லாமல் பிறரால் நடத்தப்படுகிறீர்களா? मुझे दूसरों ने इस प्रकार मेरे साथ व्यवहार करते हैं कि मेरा कोई मन और विचार नहीं है, मेरा कोई हक भी नहीं बनता।
உங்களுடைய மனதில் இருக்கிற அங்கலாய்ப்பை தேவன் பார்க்கிறார். आपके मन में जो मतलब व्याकुल है इसे परमेश्वर देखता है. இன்றைக்கு வேதனையோடு பாரத்தோடு வாழ்க்கையிலே போய் கொண்டிருக்கிறீர்களா? एक महिला या एक औरत होने के नाते जो आपके मन में गुजर रहा दुखों के साथ आप जीते हैं क्या? மனுஷர்கள் தங்கள் விருப்பத்தின்படி உங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களா? मनुष्य लोग अपना इच्छा विचारों के अनुसार आपको चलाते हैं क्या? உங்களுக்கு விருப்பமில்லாத காரியத்தை செய்ய வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்களா? जो आप नहीं भी चाहते हैं उसे आपसे कराते हैं क्या? நீங்கள் விரும்பாத வழியில் உங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களா? आपका जो इच्छा नहीं है उस मार्ग पे आपको लोग मजबूर करते हैं क्या? உங்களிடத்தில் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காமல் தங்களுக்கு பிரியம் போல உங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களா? आपकी बिना मर्जी के वो अपना इच्छा अनुसार आपको चलाते हैं और आपसे व्यवहार करते हैं क्या? பயப்படாதே மகளே, உன் நிலைமையை அறிந்துதான் ஆகாரின் சரித்திரத்தை பைபிளிலே கர்த்தர் எழுதி தந்திருக்கிறார். मत डरो बेटी, आपका जीवन की चरित्र को परमेश्वर जानने की वजह से आपके लिए आजरा की कहानी को बाइबल में लिख कर रखा है. சில ஆண்களும் கூட இந்த நிலைமையில் பரிதாபமாய் நடத்தப்பட்டு கொண்டு வரலாம். हो सकता है कुछ पुरुष लोग भी इस प्रकार परिस्थिति में रहते होंगे. இப்படி பிறரால் உரிமை பறிக்கப்பட்டு சிறுமைப்படுத்தப்பட்டு நடத்தப்படுகிற உன்னை கர்த்தர் பார்க்கிறார். वो दूसरों से आपका हकदार खोए हुए हालत में जो भी कोई है आपको परमेश्वर देखता है. இந்த பார்வோன் தன் மன விருப்பத்தின்படி ஆகாரை அன்பளிப்பாய் கொடுத்து விட்டான். तो इसे अपना इच्छा अनुसार आजिरा को फिरौन अपना तोहफा के रूप में दे दिया. ராஜ அரண்மனையில் வாழ்ந்தவளுடைய வாழ்க்கை கூடார வாழ்க்கைக்கு நேராய் திரும்பி விட்டது. राजमहल में जीवन जीती थी वो आजिरा अब तंबुओं में आकर रहने लगी. அவள் ஒரு வேலைக்காரியாக இருந்தாலும் அரண்மனையில் அவள் வாழ்ந்து வந்தாள். अगर भला हो सकता वो नौकरानी थी पर वो राजमहल की एक नौकरानी थी. திடீரென்று அந்த பார்வோன் ராஜா அவளை ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்து விட்டான். अचानक फिरौन राजा ने उसे उसके अब्राहम के लिए दे दिया. அவள் ஒரு வனாந்தரத்தில் அதாவது ஒரு கூடாரவாசியுடைய வீட்டிலே வந்து விட்டாள். तो वो एक तंबुवासी की घर में आकर बसने लगी. ஒரு அட்ரஸ் இல்லாத ஒரு மனிதனுடைய வீட்டிலே வந்து விட்டாள். वो ऐसा हुआ बिना एड्रेस के यानी कि बिना पता भी किसका नहीं है उस व्यक्ति का घर में आने लगा. அவன் அப்படியே ஒரு அந்நியனாய் பரதேசியாய் சுற்றி நடக்கிற மனுஷன். वैसे ही अब्राहम अन्य परदेशी के रूप में चलने वाला एक व्यक्ति था. எகிப்தின் ராஜா வீட்டில் எத்தனை வசதிகள் அனுபவித்திருப்பாள். वो मिस्र की राजा के घर में कितना सुविधाओं को अनुभव की होंगी. நல்ல ஆகாரம் கிடைத்திருக்கும். अच्छा भोजन उनको मिला होगा. வஸ்திரம் கொடுத்திருப்பான். अच्छे वस्त्र उनको मिला होगा. பலவித நன்மைகள் அவளுக்கு அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள். बहुत सारे भलाइयां उसको मिलता होगा. திடீரென்று இப்பொழுது ஒன்றுமில்லாத நிலையில் வந்து விட்டாள். अचानक वो ऐसा परिस्थिति में आ गया कि जहां कुछ भी नहीं हो. எல்லாமே மாறிவிட்டது. सब कुछ पल भर में बदल गया. ஆனால் பேச உரிமை இல்லை. किसी फिर भी बोलने का हक नहीं बनता. வாழ்க்கையே ஒரு வித்தியாசமான நிலைக்கு திரும்பி விட்டது. उनका जिंदगी ही शून्यता के रूप में बदल गए. சகோதரனே சகோதரியே, प्रिय भाई और बहन, உன் சொந்த பெற்றோரால் நீ இப்படி நடத்தப்பட்டிருக்கலாம். आप हो सकता है आपके माँ पिताओं से इस प्रकार आप किए होंगे. நீ வேலைக்கு சென்ற இடத்திலே உன் எஜமானன் உன்னை இப்படி நடத்தி இருக்கலாம். आप जहाँ काम जाते हैं वहाँ आपके मालिक ने आपसे इस प्रकार व्यवहार किया होगा. உனக்கு சம்பளம் தருகிற முதலாளி தன் இஷ்டத்துக்கு உன்னை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கலாம். आपको जो वेतन यानी कि आपकी कमाई का अजीरा देता है वो व्यक्ति आपके साथ इस प्रकार धोखेबाज किया होगा. உன்னுடைய வேதனை யாரிடத்தில் நீ சொல்ல முடியும்? आप अपनी दुखों को किसको बता सकते? உன் இதயத்தில் இருக்கும் விருப்பத்தை யாரிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும்? आपके मनों में पड़ा हुआ प्यास को किसको बता सकते? ஆனால் என் மகனே என் மகளே, इसलिए मेरे प्रिय बेटे और बेटियां, இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். यीशु आपसे प्रेम करता है. இயேசு உன் உண்மை நிலைமை அறிந்திருக்கிறார். यीशु आपकी असलियत को जानता है. நீ அவரிடத்தில் மனம் திறந்து பேச முடியும். आप उनसे मन खोलकर बातचीत कर सकते. ஒரு உள்ளத்தின் வேதனை அவர் கேட்க அவர் இடம் தருகிறார். आपके मन की बातों को शब्दों को सुनने के लिए वो आपको जगह देता है. கேளாதவர் போல் இருக்க மாட்டார். वो अनसुनी ना करते.
அவர் உன் காரியங்களை கேட்க விரும்புகிறார். वो आपके बातों को शब्दों को सुनना चाहते हैं. ஆகாரை 2 விசை தேவன் சந்தித்தார். आजिरा को 2 बार परमेश्वर ने मिला. ஹalleluya. हालेलुया. முகவரி இல்லாதவள், உரிமை இல்லாதவள், जिसकी कोई हक नहीं थे, जिसकी कोई जिम्मेदार और प्यास नहीं था, எஜமான்களுடைய விருப்பத்துக்கு பந்து அடிக்கப்படுகிறது போல அடிக்கப்பட்டவள். मालिकों की मन मर्जी से उनकी जीवन इधर उधर किए गए. அவளை யாரும் மதிக்கவில்லை. उन्हें कोई भी सोचा नहीं था. ஒரு பொருட்டாக எண்ணவே இல்லை. उनको कोई कुछ मतलब नहीं समझे. ஆனால் தேவன் அவளை மதித்தார். लेकिन परमेश्वर ने उसको आदर किया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த இயேசு அடிமைகளையும் நேசிக்கிறவர். ये यीशु गुलामीपन में रहने वालों को भी प्रेम करता இந்த है. இயேசு வேலைக்காரர்களையும் வேலைக்காரிகளையும் மதிப்பு கொடுத்து நேசித்து நடத்துகிறவர். ये यीशु नौकर और नौकरानियों को भी इज्जत देकर उनसे प्रेम करता है. மனுஷரால் உரிமை இழந்தவர்களுக்கு இயேசு அவர் ஆதரிக்கிறவராய் இருக்கிறார். जो इंसानों से अपना हक खोए हुए लोगों को भी परमेश्वर आदर करने वाले हैं. ஆகவே நீ இனி உன் மனவேதனையோடு வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. अब से आप अपने मन की पीड़ा सहित जीवन जीना जरूरत नहीं है. மனதில் வருகிற வேதனைகள் எல்லாம் இயேசுவிடம் பேசு. आपके मन में आने वाली सारी पीड़ा वेदनाएं आप परमेश्वर से कहकर बोलिए. அவர் உன்னை ஆதரிப்பார். वो आपको सहारा देंगे. ஹalleluya. हालेलुया. அவர் உனக்கு ஆலோசனை தருவார். वो आपको तसल्ली देंगे. வழிகாட்டி நடத்துவார். वो आपको मार्गदर्शन करेंगे. ஒருவேளை இப்பொழுது இருக்கிறதிலே தொடர்ந்து இரு என்றும் சொல்லுவார். आप हो सकता अब जैसे हैं इससे लगातार आपको रहना होगा. நிச்சயம் அது உனக்கு நன்மையாகத்தான் மாறும். निश्चय होगा कि वो आपके लिए भलाई बनकर खड़ा होंगे. உன்னை காண்கிற ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார். आपको देखने वाला एक परमेश्वर है. இதுவரை நீ அவரை காணாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். हो सकता है आप अब तक उन्हें नहीं देखा हो. இன்று இரவு அந்த இயேசு இந்த பிரசங்கத்தின் மூலம் உனக்கு வெளிப்படுகிறார். आज रात में वो यीशु इस प्रचार के द्वारा आपसे प्रकट हुआ है. அந்த இயேசுவை காணும்படி உன் கண்கள் இன்று ராத்திரி திறக்கப்படுவதாக. वो यीशु को देखने के लिए इस रात के समय आपकी आंखों को प्रभु खोलने पाए. ஹalleluya. हालेलुया. மன வேதனைகளை உன் கண்ணீரை அவர் துடைக்கிற கர்த்தராய் இருக்கிறார். आपकी मन की दुखों को और आपकी आंसुओं को वो पोंछ डालने वाला है. ஹalleluya. हालेलुया. சாராயை எடுத்துக்கொண்டு ஆகாரை கொடுத்த பார்வோன். तो साराई को लेकर आजिरा को दिया हुआ फिरौन. பாருங்கள், மனைவியை புடுங்கி விட்டு வேலைக்காரியை கொடுத்து சமாளிக்க பார்க்கிறான். देखिए वो फिरौन ने उसकी पत्नी को छीन लिया, बदले में नौकरानी को देकर मिलाना चाहा. சிலருடைய வாழ்வுக்கு ஒரு எச்சரிப்பை இதிலே சொல்ல விரும்புகிறேன். मैं इससे एक सावधान आपको देना चाहता हूँ. சகோதரா, உனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த மனைவியை எப்பொழுதும் நீ நேசிக்க வேண்டும். हे प्रिय भाई, आपके लिए परमेश्वर ने पत्नी के रूप में दिए हुए व्यक्ति से आपको बराबर प्रेम करना होगा. அவளோடுதான் காலமெல்லாம் நீ வாழ வேண்டும். उन्हीं के साथ जीवन भर आपको जिंदगी जीना होगा. அந்த மனைவியை உன் மனைவி என்று எந்த இடத்திலும் சொல்ல நீ தயங்க கூடாது. उसे अपना पत्नी की रूप में हर जगह बताने के लिए आपको संकोच ना करना है. ஆபிரகாம் செய்த தவறு என்ன? अब्राहम ने क्या गलती किया? பார்வோன் ராஜாவுக்கு பயப்பட்டு फिरौन राजा की डर से இவள் என் மனைவி என்று நான் சொன்னால், इसको अगर मैं अपना पत्नी बोलूंगा, இவள் அழகா இருக்கிறபடியினால் அவன் இவளை எடுக்க விரும்பி என்னை கொன்று போடுவான். इस सुंदर ये सुंदरी है, इस वजह से इसको लेकर मुझे मार डालेंगे करके उसने सोचा. எனவே இவள் என் சகோதரி என்று பப்ளிக்லே சொன்னான். तो इस वजह से उन्होंने प्रकट रूप से कहा कि ये मेरी बहन है. அந்த பொய் ராஜாவின் காதுக்கு போனது. तो वो झूठा जो है राजा की कान में गया. ராஜா அது உண்மை என்று நம்பினான். राजा उसको सोचा कि ये तो सच बोल रहा है. அவன் நினைத்தான், அவளை என் மனைவி ஆக்கி கொண்டு அவளுடைய சகோதரனுக்கு சில பரிசுகளை கொடுக்கலாமே. तो इस वजह से उन्होंने सोचा उसे अपना पत्नी बना लूं और उसका भाई को कुछ तोहफा दे दूं. அப்படித்தான் சாராளை எடுத்துக்கொண்டு ஆகார் போன்ற வேலைக்காரிகளை கொடுத்து விட்டார். इस प्रकार ही फिरौन ने उसको आजरा को लेकर बदले में साराई
को लेकर बदले में आजरा के जैसे कुछ तोहफा को दे दिया। சகோதரா, உன் உயிருக்கே ஆபத்து வந்தாலும் உன் மனைவியை நீ ஒருபொழுதும் விட்டு கொடுக்க கூடாது. प्रिय भाई, आप अपना जिंदगी का हानि यानी कि जान की खतरा भी हो जाए, लेकिन आप अपनी पत्नी को कोई हालत कोई जगह में छोड़ना नहीं चाहिए। சகோதரி, உன்னுடைய உயிருக்கே ஆபத்து வந்தாலும் உன் கணவனை நீ ஒருபொழுதும் விட்டு கொடுக்க கூடாது. प्रिय बहनें, आपकी जीवन की अगर खतरा भी पड़ जाए, आपके पति को कोई हालत आपको त्यागना नहीं चाहिए। அது உனக்கு தேவன் கொடுத்த வாழ்க்கை துணை. क्योंकि वो उन्हें आपको परमेश्वर जीवन के लिए दिया हुआ जीवन की साथी है। அது இஷ்டத்துக்கு விட்டு கொடுக்கிற ஒரு தன்மை தேவனுக்கு உன்னை சிருஷ்டித்த கர்த்தருக்கு பிடிக்கவே இல்லை. उसे आप जैसे कि उन्हें त्यागने का विचार आप करेंगे तो उसे बिल्कुल परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। ஒருவேளை சில கலாச்சாரங்களில் அவண்ணமாக இருக்கலாம். हो सकता है कुछ रिवाजों में इस प्रकार त्यागने का गुण हो सकता है। இஷ்டத்துக்கு மனைவியையும் புருஷனையும் மாற்றிக்கொள்ளுகிற பழக்கம் இருக்கலாம். हो सकता है ऐसा आदत, ऐसा रिवाज हो सकता है कि मन मर्जी पत्नियां इनके पतियों को बदलने का आदत हो। இயேசுவை பின்பற்றும்படி தீர்மானித்த விசுவாசிகளை உங்களுக்கு நான் உரிமையோடு சொல்லுகிறேன். यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए विश्वासी लोगों, आपको मैं ये हिम्मत के साथ कहूंगा, உன் மனைவியோ உன் கணவனையோ நீ ஒருபொழுதும் மாற்றக்கூடாது. आप अपने पति क्यों ना हो या पत्नी क्यों ना हो, उसे त्यागने का या छोड़ने का या बदलने का विचार कभी नहीं करना चाहिए। பணத்துக்காகவோ வேலைக்காகவோ உன் கணவனையோ உன் மனைவியோ விட்டு கொடுத்து விடவே கூடாது. पैसे के लिए क्यों ना हो, धन दौलत के लिए क्यों ना हो, नौकरी के लिए भी क्यों ना हो, आप किसी हालत अपना जीवन का साथी को त्यागना नहीं चाहिए। அது துரோகத்திலெல்லாம் பயங்கரமான துரோகமாகும். वो सबसे बड़े धोखेबाज होता है। அது உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு மிகவும் இஷ்டமில்லாத விஷயம். वो आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। அப்படிப்பட்ட கலாச்சாரத்தை நாம் ஒருபொழுதும் பின்பற்ற கூடாது. इस प्रकार की रिवाजों को हम लोग अपना जीवन में अपनाना भी नहीं है। நம்முடைய விசுவாசிகள் எல்லாரும் அதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். हमारे सब विश्वासी लोग इस बातों में पूरे मन तन लगाए रहना चाहिए। உன் கணவனுக்கு ஈடாக மனைவிக்கு ஈடாக எந்த பொருளும் எந்த நபரும் ஈடாகாது. आपके पत्नी की तुल्य में या आपके पति की तुल्य में इस संसार का कोई भी चीज समानता में नहीं आ सकता है। உன் சரீரம் உன் கணவனுக்கே சொந்தம், உன் சரீரம் உன் மனைவிக்கே சொந்தம். आपके शरीर आपका पत्नी का है, आपका शरीर बहनों आपका पति का है। பணத்துக்காகவோ ஒரு உயர்வுக்காகவோ உன் சரீரத்தை விட்டு கொடுக்கவே கூடாது. किसी पैसे की लालच में क्यों ना हो या कुछ पद और ऊंचाई की लालच में क्यों ना हो, अपने शरीर को किसी के सामने आप त्यागना नहीं चाहिए। நீ அப்படி செய்யும் பொழுது உன்னை சிருஷ்டித்த தேவன் அவர் உன்னை தண்டிக்க நேரிடும். इस प्रकार आप यदि करेंगे तो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको बदले में दंड दे सकता है। விபச்சாரம் என்பது கொடிய பாவமாக தேவன் கருதுகிறார். परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार बहुत खतरा एक पाप होता है। உன் மனைவி அல்லாமல் வேறொரு பெண்ணோடு நீ உடல் ரீதியான உறவு வைத்துக் கொள்ளவே கூடாது. आपके जीवन के साथी के बिना आप शारीरिक संबंध किसी और व्यक्ति के साथ करना नहीं चाहिए। கணவனை அல்லாமல் வேறு எந்த ஒரு ஆணோடும் நீ உடல் சம்பந்தமான உறவு வைத்துக் கொள்ளவே கூடாது. आपके पति के सिवा शारीरिक संबंधता के रूप में किसी दूसरे पुरुष के साथ आपको इस प्रकार नहीं करना चाहिए। அது தேவனுக்கு விரோதமான பாவம், அதை தேவன் தண்டிப்பார். ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, परमेश्वर उसकी योग्य दंड देंगे। ஆனால் உன் कணவனுக்கு உன் மனைவிக்கு நீ உண்மையாயிருந்தால் கர்த்தர் உன்னை உயர்த்துவார், மேன்மைப்படுத்துவார், மிக சந்தோஷமாய் வைப்பார். यदि आप अपने पति या अपने पति का विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपको समय पर ऊंचा करेंगे और आशीष करेंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। கணவன் மனைவிக்குள் சில சமயம் வருத்தங்கள் வரலாம். हो सकता है पति पत्नी के बीच में कभी वाद विवाद मन की कष्टता आ जाता है। இருவர் ஒன்றாக வாழும் பொழுது பல கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் ஏற்படத்தான் செய்யும். अगर दो व्यक्ति एक साथ माने जीवन में रहते हैं तो कभी कभी ऊंचा नीचा जाता है। ஆனால் உன் மனதிலே உன் கணவனை மனைவியை வெறுக்காதே. फिर भी आप अपने मन में कि अपना
अपना जीवन का साथी को आप तुच्छ और इनकार ना करना है। கசந்து கொள்ளாதே. आप घृणित नहीं होना है, आपको मन में दुख, उनके प्रति दुख नहीं करना है। உங்களுக்கு பிரியமில்லாத வார்த்தைகளை அவர்கள் பேசும் பொழுதும் यदि आपका पसंद बिना पसंद के बातों को वो लोग कह भी दे, உங்க மனசுக்கு சில வருத்தங்கள் ஏற்படும் பொழுதும் आपके मनों में कुछ दुख आने से भी அதை சகித்துக் கொள்ளுங்கள், उसे सह लीजिए, மன்னித்து விடுங்கள். उसे माफ कर दीजिए। கிறிஸ்து அதை விரும்புகிறார். मसीह यीशु इसे चाहते நீ हैं। எப்படியும் ஒன்றாகவே வாழ வேண்டும் என்பதில் கர்த்தர் கருத்துள்ளவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर का विचार यह है कि आपका परिवार हमेशा एक साथ रहने पाए, அப்பொழுது பரலோகத்திலே உனக்கு மிகப்பெரிய மகிமையும் மேன்மையும் கிடைக்கும். तब स्वर्ग में आपके लिए एक बड़े महिमा का प्रसन्नता मिलेंगे। உன் தலைமுறைகள் உன் சந்ததிகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பார்கள். आपके पीढ़ी और आपकी संतानें आशीष का कारण बनेंगे। நீ உன் கணவனையோ மனைவியோ மாற்றிக்கொள்ளும் போது यदि आप अपने पति या पत्नी को बदल लेंगे, பிள்ளைகளுடைய நிலைமையை யோசித்துப்பா. आप अपने बच्चों की जीवन और जिंदगी के बारे में सोच कर देखिए। சொந்த தாய் வேறு வீட்டில் போய் விடுகிறாள், उनकी माँ दूसरों के घर में चला जाता है, அல்லது சொந்த தகப்பனுக்கு பதில் வேறு தகப்பன் வருகிறான். और अपने पिता की जगह में दूसरा पिता के रूप में बन जाता அந்த है। பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? तब ये सोच के देखिए उस बच्चों की हालत कैसा होगा। அதுகளுடைய மனம் எவ்வளவு பாதிக்கப்படும்? तब सोच के देखिए उनके मन में कितना दुख होगा। தேவனுக்கு விரோதமாய் இப்படிப்பட்ட தப்புகளை செய்யாதே. आप परमेश्वर की विरोध में इस प्रकार गलती ना करें। உன் சொந்த கணவனுக்கு மனைவிக்கு நீ துரோகத்தை செய்யாதே. आप अपना पति की विरोध में इस प्रकार धोखेबाज के काम ना करें। அதன் மூலம் உன் பிள்ளைகளுக்கும் நீ துரோகத்தை செய்யாதே. उसी प्रकार उसके साथ साथ आप अपने बच्चों को भी धोखेबाज करते हैं। கர்த்தர் காரியங்களை செம்மைப்படுத்தி தருவார். परमेश्वर सब कुछ सफल करके देगा। ஆகவே கர்த்தரை நம்பி வாழுங்கள். इसलिए आप लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। இயேசு கசந்து போன வாழ்க்கையை கூட மதுரமாய் மாற்றி தர வல்லவர். यीशु अपने कड़वेपन में रहने वाले जीवनों को भी मधुर में लाकर रख सकता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒருமுறை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மாரா என்கிற இடத்தில் கசப்பான தண்ணீர் கிடைத்தது. एक बार इस्राएली लोगों को मारा के नाम पर एक स्थान पर एक कड़वा पानी मिला था। கர்த்தர் அந்த தண்ணீரை மதுரமாக மாற்றி கொடுத்தார். कारा पानी को परमेश्वर वहां पर मधुर बनाकर दे दिया। வேறு தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை, दूसरा पानी नहीं दिए, அதே கசப்பை இனிமையாய் மாற்றி கொடுத்தார். उसी पानी को उसी कड़वा को वो उस मधुर बनाकर दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। மனைவியும் கணவனையும் மாற்றி தர மாட்டார். पत्नी को या पति को बदल कर नहीं देंगे, ஆனால் அந்த மனைவியிடத்தில் நீ எதை கசப்பாய் நினைத்தாயோ அதை உனக்கு இனிமையாய் மாற்றி தருவார். उस पत्नी के पास या उस पति के पास जिस बातों को आप कड़वा सोचा था उसी को प्रभु मधुरता में बदल कर देगा। அந்த கணவனிடத்தில் எதை வெறுப்பாய் நினைத்தாயோ அதையே உனக்கு இனிப்பாய் மாற்றி தருவார். आप अपने पति के पास जिसे नफरत देखा उसी चीजों को परमेश्वर मधुरता में बदल कर देंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனவே கணவன் மனைவி மாறி மாறி குறை சொல்லாதிருங்கள். आप लोग परिवार में एक दूसरों के ऊपर में अदल बदल कर दोष मत लगा, குற்றம் சாட்டாதிருங்கள். एक दूसरों को दोष लगाते मत रहना। அவர்களிடத்தில் நீங்கள் காண்கிற குறைகளை தனிமையில் தேவனிடத்தில் மட்டும் சொல்லுங்கள். उनमें से अगर कोई कमी आप देखते हैं तो अकेलापन में आप परमेश्वर से कहें और उनसे भी कहें। தேவன் உங்கள் அந்தரங்க ஜெபத்தை கேட்பார். परमेश्वर आपके अंदर की प्रार्थना को सुनेगा। உங்கள் புருஷனிடத்தில் உங்கள் மனைவியிடத்தில் நிச்சயம் கிரியை செய்வார். आपके पति के पास या आपके पत्नी के पास परमेश्वर निश्चय इस प्रकार भला करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। பார்வோனுடைய இஷ்டத்துக்கு அன்பளிப்பாய் கொடுக்கப்பட்ட ஆகார் फिरौन की मन मर्जी के अनुसार तोहफा के रूप में दिया हुआ एक आजिरा को देखते हैं। இரண்டாவதாக दूसरी बात में இந்த ஆகாரின் சரித்திரத்திலே நான் சொன்னேன். सारा की चरित्र में मैंने बताया, ஆகாரின் சரித்திரத்திலே சொன்னேன், मैं आजिरा के चरित्र में बताया அவள் ஆபிரகாமினால் கைவிடப்பட்ட ஆகார். वो अब्राहम से त्यागा हुआ एक आजिरा है। கணவனால் கைவிடப்பட்ட ஒரு ஆகார். पति से त्यागा हुआ एक आजिरा।
இது அடுத்த வேதனை. ये दूसरा दुख है। பார்வோன் திடீரென்று ஆபிரகாம் கையில கொடுத்துட்டான். फिरौन अचानक आजरा को अब्राहम के हाथ में दे दिया। அந்த வேதனை மாறுவதற்குள்ளாக वो दुख मन से हटने से पहले ही அடுத்த வேதனை அவளை சந்திக்கிறது. दूसरा दुख उनके मन में आ गया। அந்த ஆபிரகாம் ஒரு துருத்தி தண்ணீரை கொடுத்து இவளை வெளியே அனுப்புகிறார். वो पति के रूप में स्वीकार किया हुआ अब्राहम एक थैली में पानी देकर उसको उसके घर से निकाल दिया। என்ன வேதனை, कितना दुख की बात है। எத்தனை மனுஷர்களால் ஏமாற்றப்படுகிறாள். कितने लोगों से वो धोखा खा रही है। இப்படிப்பட்ட பெண்மணிகள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? यहाँ पर ऐसा हालत में रहने वाले महिला लोग हैं। சகோதரர்கள் இப்படி இருக்கிறவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? यहाँ पर इस प्रकार हालत में रहने वाले पुरुष लोग इसको सुनते होंगे। உன்னை பற்றி கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். आपके बारे में परमेश्वर अच्छा से जानता है। இன்று ராத்திரி உன்னை அவர் ஆதரிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். आज रात में परमेश्वर आपको तसल्ली देना और आपको सहारा देने वाला बनता है। இவன் என்னை நன்றாக வைத்து வாழுவான் என்று அவனை நம்பி புறப்பட்டாய். तो आजरा ने ये भरोसा करके निकली कि ये मुझे अच्छा सा देखभाल करेगा, ஆனால் இன்று நீ கைவிடப்பட்டு நிற்கிறாய். लेकिन आज वो त्यागावा बनकर खड़ी है। உன் கணவன் மேல் இருந்த நம்பிக்கை உடைந்து போயிற்று. तो वो अपना पति के ऊपर रखा हुआ भरोसा तोड़ दी गए। சில மனைவிமாரும் கணவர்களுக்கு இப்படி செய்கிறார்கள். कुछ पत्नी लोग भी अपना पति के लिए ऐसा करते हैं। எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட பரிதாபத்துக்குள் இருக்கிறீர்கள்? कितने लोग हैं जो यहाँ पर इस प्रकार दुखों में हैं। குடும்ப வாழ்வில் பயங்கர கஷ்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள், परिवार के जीवन में कठिन कष्टों को सहने वाले लोग भी यहाँ पर है। உன் வாழ்விலே கர்த்தர் கிரியை செய்ய விரும்புகிறார். आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं। ஆகாருக்கு செய்தது போல உனக்கு ஆறுதலும் ஆதரவும் தர கர்த்தர் விரும்புகிறார். आजरा को जैसा प्रभु ने किया वैसे आप लोगों को भी करने के लिए वो तैयार है। ஏசாயா 54 அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளலாம். ஏசாயா 54 को खोल लेंगे। அங்கே 7 விதமான கைவிடப்பட்ட பெண்களை குறித்து பைபிள் சொல்லுகிறது. वहाँ पे 7 प्रकार की त्यागी हुई स्त्री के बारे में लिखा है। நான் அதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். मैं उसे आपके लिए बताऊंगा। நீங்கள் யார் இந்த 7இல் எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்களோ, आप में से कोई भी अगर ये हालत में क्यों ना हो, ஆண்களாக கூட சில சந்தர்ப்பங்களில் இருக்கலாம், पुरुष लोग भी ये परिस्थिति में होंगे, அத்தனை பேருக்கும் இயேசு ஆதரவு தருகிறவர், ஆறுதல் அளிக்கிறவர். उन सबको परमेश्वर सहारा तसल्ली देंगे। முதலாம் वचனத்தை வாசிப்போம். पहला वचन को पढ़ेंगे। हे भांज, तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जैसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। இங்கே 2 ஸ்திரீகளை குறித்து இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर 2 स्त्रियों के बारे में इस वचन पर लिखा हुआ है। ஒன்று பிள்ளை பெறாத மலடி, एक जो पुत्रहीन बांझ थी, இரண்டாவது அநாத ஸ்திரீ. दूसरा अनाधार यानी कि स्त्री है। பாருங்கள், பிள்ளை இல்லாதபடியினால் சில ஸ்திரீகள் குடும்பத்தில் கஷ்டப்படுத்தப்படுகிறார்கள். तो यहाँ देखिए, पुत्रहीन संतान नहीं होने के कारण से कुछ लोग इस परिस्थिति में रहते हैं, पीड़ा में। உனக்கு பிள்ளை பிறக்கவில்லை என்று உன்னை பரிகசிக்கிறார்கள். आपको आप यानी कि पुत्रहीन है बोलकर आपको लोग निंदा करते हैं, உன்னை சிறுமைப்படுத்துகிறார்கள். तो आपको तुच्छ जानते हैं, உன்னை அந்த குடும்பத்துக்கு சாபம் என்று நினைக்கிறார்கள். आपको उस परिवार के लिए श्रापित जानते हैं, मानते हैं। குடும்பத்தில் சில நல்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு உன்னை சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். परिवार का कुछ अच्छे फंक्शंस में आपको शामिल नहीं कराते हैं। அந்த குடும்பத்தில் வருகிற சகல கஷ்டங்களுக்கும் உன்னைத்தான் காரணம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள். उस परिवार में आने वाले सारे कष्टों का
कारण वो बांझ ही है करके उस पर दोष लगाते நீ हैं। பிள்ளை பெறாதபடியினால் உன்னை அப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். आपके संतान नहीं होने की वजह से आपके साथ इस प्रकार बर्ताव करते हैं, ஆனால் உன்னை மகிழும்படி கர்த்தர் செய்வார். लेकिन आपको आनंद देने के लिए परमेश्वर काम करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு அன்னாளுக்கு ஆண்டவர் அவள் ஜெபத்தை கேட்டு ஒரு சாமுவேல் என்ற பிள்ளையை கொடுத்தார். हन्ना की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उनकी मन्नत के अनुसार उसको एक सामुएल को दिया। பெருமூச்சு விட்டு அவளை பெருமகிழ்ச்சி அடைய கர்த்தர் செய்தார். आहे भर भर के रोने वाली वो हन्ना को परमेश्वर मतलब आनंद की भरपूर को दिया। இந்த பைபிள்ல எத்தனையோ சரித்திரங்கள் அப்படி சொல்லுகிறது. इस बाइबल में अनेक चरित्र हम सबके लिए लिखा हुआ है। தேவன் ஜீவனுக்கு அதிபதியாய் இருக்கிறார். परमेश्वर जीवन का परमेश्वर है। அவர் உங்கள் வாழ்விலே புத்திர பாக்கியத்தை தர வல்லவர். वो आपके जीवन में संतान की आशीष को देंगे। நீங்கள் இருவரும் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து இயேசுவை விசுவாசியுங்கள். आप दोनों मिलकर प्रभु यीशु को विश्वास करिए। ஈசாக்கும் ரெபெக்காளும் ஜெபம் பண்ணினார்கள். அப்பொழுது ரெபெக்காள் கற்பந்தரிக்கும்படி கர்த்தர் செய்தார். इसहाक और रेबेका ने मिलकर प्रार्थना की तो परमेश्वर उनकी वंश को बदल कर दिया। யாக்கோபும் ராகேலும் பிள்ளை பெறாததை குறித்து மாறி மாறி சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். याकूब और राहेल दोनों बिना संतान के वजह से वो झगड़े कर रहे थे। உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கு எந்த நிலைமை இருக்கிறது? आपके घर में आज क्या हालत है? மாறி மாறி சண்டை போடாதிருங்கள். अदल बदल कर आप झगड़ा मत करो। குறை பேசிக் கொண்டு இருக்காதிருங்கள். एक दूसरों को दोष मत लगाओ। தேவன் ஜீவனுக்கு அதிபதியாய் இருக்கிறாரு. परमेश्वर जीवन का ईश्वर है। இருவரும் ஒருமனப்பட்டு அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். दोनों एक मन के साथ उनकी ओर पुकारे। கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான சந்ததியை தந்து மகிழ பண்ணுவார். परमेश्वर आप लोगों को आशीष का संतानों को देकर आनंदित कराएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த விசுவாசத்தோடு இன்றைக்கு ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. ये विश्वास के साथ आज आपको प्रार्थना करना होगा। கர்த்தர் உனக்கு நன்மை செய்வார். परमेश्वर आपके वो भला करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பிள்ளை இருந்தால் பாக்கியமா? बच्चे हैं तो भी आप सौभाग्य जीवन है क्या? அப்படி நினைக்காதிருங்கள். ऐसा ना सोचिए। உன் மனைவியே உனக்கு ஒரு பாக்கியம்தான். आपका पत्नी ही आपके लिए एक शोभा है। கணவனே உனக்கு பாக்கியம்தான். आपका पति ही आपके लिए एक ऐश्वर्यता है। பிரச்சனை கணவனிடத்தில் இருக்கிறதா மனைவியிடத்தில் இருக்கிறதா என்று கூட கண்டுபிடிக்க முடியல. तो ये मतलब कमी पति के पास है या पत्नी के पास है, ये भी जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं। ஆனால் இந்த சமுதாயத்தில் எப்பொழுதும் பெண்ணின் மேலே பழி போட்டு விடுவார்கள். लेकिन समुदाय के लोगों ने हमेशा महिलाओं के ऊपर में ही दोष लगाते हैं। அந்த வேதனை அனுபவிக்கிற மகளே உனக்கு கர்த்தர் ஒரு மகிழ்ச்சியை தரப்போகிறார். इस प्रकार पीड़ा सहने वाली प्रिय बहन आपको परमेश्वर एक आनंद देने वाला है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளை இல்லை என்ற உடனே சாராள் ஒரு ஆகாரை ரெடி பண்ணி விட்டாள். तो अब्राहम को बच्चे नहीं होने के वजह से सारा ने अपना एक आजरा को तैयार करा दिया। இது மாதிரி சில குடும்பத்திலே செய்கிறார்கள். वैसे ही कुछ लोगों का परिवार में करा देते हैं। மருமகளிடத்திலே பிள்ளை பிறக்கவில்லை. बहू के पास अगर बच्चे संतान नहीं हुए, எனவே மகனுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறார்கள். तुरंत बेटा के लिए दूसरा विवाह करना शुरू करते हैं। அப்படி செய்யாதிருங்கள். ऐसा मत करिए। மனைவியை கஷ்டப்படுத்தாதிருங்கள். पत्नियों को कष्ट ना दे। அவள் பிள்ளையை பெற்று தராவிட்டாலும் वो यदि संतान ना जनी, அவள் தான் உன் மனைவி. वो ही है हमारा पत्नी। அந்த ஆகாரை சேர்த்தது போல சேர்க்காதிருங்கள். तो आजरा के साथ जैसा किया वैसा ना करे। நீங்கள் எப்பொழுதும் ஈசாக்கை போல கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களாய் இருங்கள். आप लोग हमेशा इसहाक के जैसा परमेश्वर को देखने वाले पुकारने वाले बने। ஈசாக்கு ரெபெக்காளுக்கு 20 வருடங்கள் பிள்ளை இல்லை. इसहाक रेबेका को 20 साल संतान नहीं थे। அவன் வேறு மனைவி தேடவில்லை. वो दूसरा पत्नी नहीं ढूंढा। ரெபெக்காளை கைவிடவில்லை. रेबेका को त्यागा नहीं। அவளை கஷ்டமாய் பேசி அவளை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தவில்லை. उनसे उनको दुख देकर निंदा नहीं किया। அவன் தன் மனைவிக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினான். वो अपने पत्नी के लिए प्रार्थना की। கர்த்தர் புத்திர பாக்கியத்தை கொடுத்தார். परमेश्वर संतान की आशीष को दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். பிள்ளை
பெறாத மலடியே மகிழ்ந்து களி கூறு. ये बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் உனக்கு இருக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए हैं. அநாத ஸ்திரீகள், अनाथ स्त्री लोग है, ஆகாரை போன்றவர்கள். मतलब त्यागी हुई लोग है. அவளுக்கு அப்பா யாரு அம்மா யாரு ஒண்ணுமே தெரியாது. उनके लिए माँ कौन है पिता कौन है पता नहीं है. புருஷன் அவளுக்கு எந்த தீமை செய்தாலும் அதை கேட்கறதுக்கு நியாயம் கேட்கறதுக்கு ஒருத்தரும் கிடையாது. जो उसको विवाह किया उसका पति उनको जितना भी सताए फिर भी उसके कुछ बोलने वाला उसके लिए उसको कुछ पूछने वाला भी नहीं है. அவளுக்காக பேச யாரும் இல்லை. उसी महिला के लिए वकालत करने में कोई नहीं है. அதுபோல அநாத ஸ்திரீகளாக யார் இருக்கிறீர்கள்? इस प्रकार कोई त्यागी हुई स्त्री के रूप में अगर कोई है, எனக்கு பெற்றோர் இல்லை, मेरे लिए माँ पिता नहीं है, எனக்கு அப்பா இல்லை அல்லது அம்மா இல்லை, मेरे लिए पिता नहीं है नहीं तो माँ नहीं है, நீ வருத்தப்படாதே. आप दुख नहीं कर. உன் தகப்பன் மரித்திருக்கலாம், आपका पिता गुजर गया होगा, தாய் மரித்திருக்கலாம், आपका माँ मर गए होंगे, அல்லது உன்னை கைவிட்டு விட்டு போயிருக்கலாம். लेकिन या तो आपको छोड़कर त्याग कर चले गए होंगे. அநாத ஸ்திரீகளை கர்த்தர் ஆதரிக்கிறவராய் இருக்கிறார். त्यागी हुई अनाथों को परमेश्वर स्तुति लेता है. இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை வைப்பாயாக. यीशु मसीह का ऊपर भरोसा रखने पाए. வாழ்க்கை இயேசுவின் கையில் ஒப்பு கொடுப்பாயாக. आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करने पाए. இயேசு உன் வாழ்க்கையை பொறுப்பெடுப்பார். यीशु आपके जीवन को अपने हाथ में लेंगे. தகப்பன் அல்லது தாய் இருந்து நடத்துவதை பார்க்கிலும் இயேசு நல்ல வண்ணம் உன்னை நடத்துவார். आपके माँ या पिता जैसे आपको अगवा करना था चलाना था वह उससे बेहतर प्रभु आपको चलाएंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. அநாத ஸ்திரீகளுக்கு ஆண்டவர் அடைக்கலம் கொடுக்கிறார். अनाथ स्त्रियों को त्यागी हुई बहनों को परमेश्वर सहारा देता है. 6ஆம் வசனம் வாசிங்க. उनकी 6वां वचन पढ़ते हैं. क्योंकि यहोवा ने मुझे ऐसा बुलाया है मानो तो छोड़ी हुई और मन की दुखियां और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो तो परमेश्वर का ये तेरे परमेश्वर का यही वचन है. கைவிடப்பட்டு மனம் நொந்த ஸ்திரீ. यहाँ पे लिखा त्यागा हुआ मन की दुखी हुई स्त्री. கைவிடப்பட்ட பெண்கள் இருக்கிறார்கள். तो यहाँ पर छोड़ी हुई यानी कि त्यागी हुई बहन यानी कि महिला लोग रहते हैं. அப்பா அம்மாவுக்குள் பிரச்சனை வரும் பொழுது பிள்ளைகளை கைவிட்டு விடுகிறார்கள். जब माँ पिता की आपस में परेशानियां संकट आता तो वो बच्चे लोगों को छोड़ देते हैं. அப்பா அம்மா பிரிந்து போகும் பொழுது பிள்ளைகள் கைவிடப்படுகிறார்கள். जब उनके माँ पिता अलग अलग हो जाते हैं तो उनके बच्चे लोग त्यागा जाता है. உங்களில் யார் அப்படிப்பட்ட வேதனையில் வாழ்கிறீர்கள்? यहाँ पर ऐसा कोई दुखों में रहते होंगे. அப்படி கைவிடப்பட்டவர்களை கர்த்தர் ஆதரிக்கிறார். इस प्रकार त्यागा हुआ लोगों को परमेश्वर तसल्ली देना चाहता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்கள், ஒவ்வொரு பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு பற்றியும் ஆண்டவர் பைபிள்ல எழுதி வைத்திருக்கிறார். देखिए एक एक परिस्थिति में रहने वाले लोगों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है. இந்த தேவன் எவ்வளவு நல்லவர். हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்மை எவ்வளவாய் அவர் நேசிக்கிறார். हम सबको कितना ज्यादा वो प्रेम करता है. பாதிக்கப்பட்ட உங்கள் ஒவ்வொருவரை எவ்வளவாய் உங்கள் மேல் கரிசனையாய் இருக்கிறார். दुखी यानी कि पीड़ित परिवारों के ऊपर वो कितना ख्याल करता है. நான்காவதாக चौथी बातों को देखेंगे. இளம் பிராயத்தில் விவாகம் செய்து தள்ளப்பட்ட மனைவி. तो जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो. நீ விவாகமாகி உன் புருஷனால் தள்ளப்பட்டவள். जवान की उम्र में विवाह तो हुआ पर उनके पति से जवानी की उम्र में ही त्यागी हुई स्त्री हो. உன் புருஷன் டைவர்ஸ் பண்ணிவிட்டா. आपके पति आपको तलाक दे दिया हो. அப்படி வேதனையோடு நீ இருக்கிறாய். उस पीड़ा में उस दुख में आप रहते होंगे. தள்ளப்பட்டவர்களையும் கர்த்தர் ஆதரிக்கிறவராய் இருக்கிறார். जवानी की त्यागी हुई स्त्रियों को भी परमेश्वर उनका तसल्ली देता है. ஆகவே
ஒவ்வொரு அனுபவத்தில் வேதனைப்படுகிறவர்களும் இயேசுவை இந்த ராத்திரி வேளை நோக்கி பார்க்க தொடங்குங்கள். इस प्रकार जो जो परिस्थिति में दुख उठाने वाले लोगों को आज रात परमेश्वर की ओर आपको मन लगाना होगा. இயேசுவின் வேதனை அறிகிறார். परमेश्वर आपकी मन की दुख पीड़ा को समझता है. 11ஆம் வசனத்திலே उसकी 11वां वचन में पढ़ते हैं, இன்னும் 3 கூட்டத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. और 3 लोगों के झुंडों के बारे में लिखा है. வாசியுங்கள். हे दुखी यारी, तू जो आंधी की तराई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की चपीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से लगाऊंगा, आमीन. नीलमणि से डालूंगा. ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சிறுமைப்பட்டவளே என்று ஒரு கூட்டத்தை சொல்லுகிறார். ये दुखियारी स्त्री के रूप में लिखा है. பல வேதனைகளால் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். बहुत सारे दुखों के साथ में वो दुख यानी कि குடும்பத்திலோ சமுதாயத்திலோ ஒரு மதிப்பே தராமல் உங்களை சிறுமைப்படுத்தலாம். क्लेश और दुखों के साथ में वे लोग उनको दुख देते होंगे. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் கர்த்தர் ஆதரவாய் இருக்கிறார். तो उन जैसे लोगों को भी परमेश्वर आदर करता है. பெரும் காற்றில் அடிபட்டவளே, वहां पे ये दुखियारी स्त्री आंधी की सताई है बोल के लिखा है. 6வது அப்படி ஒரு கூட்டத்தை சொல்லுகிறார். जो आंधी में सताई गई स्त्री बोल के लिखा है. பெருங்காற்றில் அடிபட்டதென்றால் யார்? मतलब आंधी में सताई गई मतलब क्या है? வாழ்க்கை சமாதானமாய் போய் கொண்டிருக்கும் போது जो जीवन शांतपूर्वक चलता है तो ஏதோ பிரச்சனைகள், कुछ परेशानी है, அது பயங்கர காற்றாய் மோதுகிறது. वो परेशानी एक आंधी के समान उनके जीवन में आता है. சமாதானத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் விடுகிறது. अचानक आता है, उनका जीवन का सारा शांति को निकाल देता है. பொருளாதாரத்தை அழித்து விடுகிறது. तो उनके धन दौलत जो भी वो जमा कर रखती है सब कुछ खत्म कर देता है. குடும்பத்தையே சிதறடித்து விடுகிறது. वो दुखों के साथ चितर पितर कर देता है. அப்படி யார் இருக்கிறீர்கள்? अगर ऐसा कोई है इधर, குடும்பம் நன்றாய் போய் கொண்டிருக்கும் போது परिवार अच्छा से चलता है, திடீரென்று ஒரு வியாதி, लेकिन अचानक कुछ बीमार, அந்த வியாதி சுகமாகாமல் காலங்களாய் நீளுகிறது. वो बीमार काफी दिन तक बिना चंगा किए जाता है. பெருங்காற்று மோதுகிறது. वो एक आंधी के समान आता है. அதிலே பயங்கர வேதனைகளை சந்திக்கிறீர்கள். उसी आंधी में काफी दुखों को आप उठाते हैं. திடீரென்று ஒரு இழப்பு, अचानक आपके साथ धोखेबाज होता है. திடீரென்று ஒரு பண கஷ்டம், अचानक एक पैसा का सखेत बना जाता है. திடீரென்று ஒரு கடன் பாரம், अचानक एक कर्जदारों की यानी कि उदारता आ जाता है. உங்களால தாக்கு பிடிக்க முடியாத நிலைக்கு அந்த காற்று அடிக்கிறது. तो आप सह नहीं सकते, इस प्रकार आपके जीवन में वो आंधी के समान आता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. சோதனை காற்றுகள் பல வேளை வீசுகிறது. तो आपके जीवन में हो सकता परीक्षाएं बार बार आते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. யோபு சுகமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நாட்களிலே अय्यूब कितना कुशल से जीवन जी रहा था. அவனுக்கு பயங்கர சோதனை காற்றுகள் வீசின. उनको बहुत बड़ा एक परीक्षा का आंधी उन पर लगी. அடுத்தடுத்து இழப்புகளை சந்தித்துக் கொண்டே இருந்தான். लगातार बार बार उनके ऊपर में हार के ऊपर हार मानने लगा. உங்கள் வாழ்க்கையில் வேலை இழந்து தவிக்கிறீர்களா? क्या आपके जीवन में नौकरी त्यागा हुआ है? சம்பளம் கிடைக்கவில்லையா? क्या आपको अजरा वेतन आपका कमाने का पैसा नहीं मिला है? குடும்பங்களுக்குள் பிரச்சனை வந்து மோதி கொண்டிருக்கிறதா? क्या आपके परिवार में बार बार परेशानियां आकर आंधी के समान आता है? நீங்கள் செய்யாத ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்தீர்கள் என்று வீண்பழி போட்டிருக்கிறார்களா? आपने जिसे नहीं किया उसे आपने किया करके आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है. பல்வேறு காற்றுகளால் நீ அடிபட்டிருக்கலாம். इस प्रकार विभिन्न प्रकार की आंधियों से आप पीड़ित होंगे. கர்த்தர் உன் வேதனைகளை அறிகிறார். आज परमेश्वर आपकी मन की दुखों को जानता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. 7வது கூட்டமாக 7वीं एक झुंड को पढ़ते हैं. தேற்றரவற்றவளே,
मतलब ஆறுதல் கிடைக்காதவளே, वहां पर शांति नहीं मिली जैसा लोगों, கொஞ்ச காலமாக உனக்கு ஒரு ஆறுதலும் கிடைக்கவில்லை, जो कुछ दिन तक जिसको कोई शांति नहीं मिले, உனக்கு ஆறுதல் சொல்ல எந்த மனுஷனும் முன்வரவில்லை, तुम्हें तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए कोई आगे नहीं आया, சொந்த தாய் தகப்பன் கூட உனக்கு ஆறுதல் சொல்லவில்லை, आपका खुद का माँ पिता भी आपको तसल्ली नहीं दिए, புருஷன் உனக்கு ஆறுதல் சொல்லவில்லை, आपका पति भी आपको तसल्ली नहीं दिया, ஆறுதल இல்லாமல் நீ வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய், आप बिना तसल्ली के आप दुख उठाते होंगे। இந்த ராத்திரி இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார், आज रात प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை உயர்ந்து போனாலும், अगर पहाड़ टल जाए पर என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், अम्मा मेरी कृपा तुझसे दूर नहीं होगी करके लिखा है, என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை உன்னை விட்டு நிலை பெயராது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், मेरे शांति की वाचा तुझसे दूर नहीं होगी करके लिखा है। இந்த ஏழு விதமான வேதனைக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிற வாக்குத்தத்தம் தான் நான் இப்பொழுது சொன்ன வசனம்। तो ये 7 प्रकार की पीड़ाओं में रहने वाले स्त्रियों के लिए प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दिया, इसी को मैंने अब बताया। ஏசாயா 54:10 இது இருக்கிறது, ஏசாயா 54 का 10 में इस वचन लिखा है, ஆகவே கர்த்தர் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார், परमेश्वर आपसे नहीं हटेंगे। நீ மலை போல நம்பி இருந்தவர்கள் விலகி போயிருக்கலாம், आप जिसे पहाड़ के जैसा सोचा होगा वे भी आपसे हट गए होंगे, அவர்களால் கைவிடப்பட்டு இன்னைக்கு அலைந்து கொண்டிருக்கலாம், और उनसे त्यागा हुआ अनुभव में आप यहाँ पर अब इधर उधर होते होंगे, கர்த்தருடைய கிருபை உன்னை விட்டு விலகவில்லை, तो भी शांतिदायक का परमेश्वर का वाचा तुमसे दूर नहीं होंगे। எத்தனை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? कितने लोग विश्वास करते हैं? அல்லேலூயா, हालेलुया। பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறீர்கள், आप अनेक कष्टों को सामना करते பல हैं, வேதனைகளை அடைந்திருக்கிறீர்கள், कितने दुखों को जीवन में सामना करते ஆனால் हैं, தேவனுடைய கிருபை உன்மேல் இருக்கிறது, लेकिन परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है। என்றைக்கு இயேசுவை கரம் பிடித்தாயோ, जिस दिन आप परमेश्वर को हाथ थामा, ஞானஸ்நானத்திலே உடன்படிக்கை செய்தாயோ, बपतिस्मा में परमेश्वर के साथ वाचा बांधा, அந்த சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை वो शांति का वाचा உன்னை விட்டு விலகுவதே இல்லை, तुझसे दूर ना होंगे। அல்லேலூயா। हालेलुया। மனிதர்கள் கை விட்டிருக்கலாம், चाहे इंसान है, लोग आपको त्याग सकते हैं, இயேசு கரம் பிடித்திருக்கிறார், परमेश्वर आपके हाथ थामा है। அல்லேலூயா। हालेलुया। யார் கைவிட்டார்கள்? कोई आपको त्यागा होगा, மனசுல சொல்லுங்க, आप मन मन से बोलिए, அவர்கள் என்னை கைவிட்டார்கள், उन्होंने मुझे त्याग दिया, இயேசு என்னை கரம் பிடித்தார், यीशु मेरे हाथ थामा। அல்லேலூயா। हालेलुया। சொல்லி பார்ப்போமா? ऐसा बोलकर मुंह से अंगीकार करिए, சொல்லுங்க, இயேசு என்னை கரம் பிடித்திருக்கிறார், यीशु मेरे हाथ थामा है, இயேசு என்னை கரம் பிடித்திருக்கிறார், यीशु मेरे हाथ थामा है। எல்லாரும் சொல்லுவோம், सब लोग बोलिए, இயேசு என்னை கரம் பிடித்திருக்கிறார், यीशु मेरे हाथ थामा है। ஹalleluya। हालेलुया। ஆகவே நீ கவலைப்படாதே, इसलिए आप दुखित ना हो, கலங்காதே, आप व्याकुल ना हो, எதிர்காலத்தை குறித்து எண்ணி நீ பயப்படாதே, आप अपने जिंदगी के भविष्य के बारे में आप चिंता मत करो। உலகத்துல யார் உன்னை கைவிட்டால் दुनिया में कोई भी आपको त्यागा होगा, இயேசு உன்னை கரம் பிடித்திருக்கிறார், यीशु आपके हाथ थामा है। ஹalleluya। हालेलुया। ஹalleluya। हालेलुया। ஒரு தமிழ் பாடல் என் நினைவில் வருகிறது, एक तमिल में गीत मेरे मन में याद आता है, பாடும்படி விரும்புகிறேன், मैं उसे गाना चाहता हूँ। அப்புறம் அது ஹிந்தில இருந்தா யாராவது பாடுங்க। उसे हिंदी में हो तो हम गाएंगे। இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார், இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார், கடும் புயல் வரினோம் பெரும் காற்று வீசினோம் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார், இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார், இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார், கடும் புயல் வரினோ பெரும் காற்று வீசினோ அவர் என்னை கைவிட மாட்டார், बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने से प्रभु नहीं छोड़ेंगे, बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने से
कभी नहीं छोड़ेंगे यीशु என்னை கைவிட மாட்டார் बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने से मेरा हाथ ना छोड़ेगा मेरा इश्क हाथ ना छोड़ेगा बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा He will never let go my hand. Jesus never let go my hand. Though the storms may come and the winds may blow, Jesus never let go my hand. He will never let go my hand. Jesus never let go my hand. Though the storms may come and the winds may blow, Jesus never let go my hand. यीशु என்னை छोड़ेगा बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा जो मेरा हाथ ना छोड़ेगा बोले यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा बड़ी आंधी आने से बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा हालेलुया हालेलुया ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद Glory, praise the Praise the Lord, Lord, praise the Lord, praise the praise the Lord, Lord. praise the Lord. பார்வோனால் அடிமையாய் அல்லது அன்பளிப்பாய் கொடுக்கப்பட்ட ஆகார் तो फिरौन से तोहफा के रूप में दिया गई आजिरा को देखा கணவனாகிய ஆபிரகாமால் கைவிடப்பட்ட ஆகார் पति से त्यागी हुई एक आजिरा के बारे में देखा ஐயா கைவிடப்பட்ட பொழுது ஜீவனாம்சம் கூட அவன் கொடுக்கவில்லை पर जब उनको उनका पति ने त्यागा पर उनकी जिंदगी के लिए कुछ दिया भी नहीं था கொஞ்சம் அப்பங்களும் ஒரு துருத்தி தண்ணீரும் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டார் बस एक रोटी दे दिया थोड़ा पानी दे दिया என்ன சங்கடமான வாழ்க்கை तो देखिए कितना दुख का काम होता है அந்த ஆகாரை தேடி அவளை கண்டுபிடித்து பேசின கர்த்தர் उस आजिरा को ढूंढ कर उनसे बात किया உன்னை परमेश्वर ஒரு பொழுதும் கைவிடாம आपको कोई हालत नहीं छोड़ेंगे ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya மூன்றாவது तीसरी एक बात बताता எஜமாட்டியால் கடினமாய் நடத்தப்பட்ட ஆகார் मालकिन से कठिनता से चलाए गए एक आजिरा को देखते हैं சாராள் என்கிறவள் அவளுக்கு எஜமாட்டியாய் மாறினாள் तो सारा जो है उनका मालकिन बनी அவள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன சரித்திரத்தின்படி இவளை சில காலம் கடினமாக நடத்தினாள் जो मैं पहले चरित्र को बताया उसके अनुसार कुछ दिन इनको बहुत कठिनता से चलाई இவள் வேலையெல்லாம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் ये सब काम करके देना चाहिए ஆனால் அவள் இவளை கடினமாய் நடத்துவாள் लेकिन फिर भी वो उनको कठिनता से उनके साथ व्यवहार சில किया எஜமானர்கள் இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் कुछ मालिक और मालकिन लोग इस प्रकार ही रहते हैं நீங்க வேலை பார்க்கிற தோட்டத்துல கம்பெனியில எப்படி இருக்கிறது इसी आप जहां पर काम करते हैं वो चाय बहान में आपके साथ मालिक लोग किस प्रकार व्यवहार करते हैं கடினமா வேலை வாங்குகிறார்களா क्या आपसे कठिनता से व्यवहार करते या काम कराते हैं வேலைக்கு தக்க சம்பளம் தராமல் இருக்கிறார்களா आप जितना मेहनत करते हैं उसका मेहनत का अजरा आपको नहीं देते हैं ஆனாலும் நீ கவலைப்படாதே फिर भी आप उदास ना हो இயேசுவை நம்பு यीशु मसीह पर विश्वास रख அவர்கள் தராததை இயேசு உனக்கு தருவார் वे लोग जो नहीं दिया उसे यीशु देंगे ஹalleluya हालेलुया யாக்கோபு லாபான் என்கிற எஜமானுக்கு ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்தான் याकूब लाबान के पास भेड़ बकरी चराता रहा
லாபான் ஒழுங்காய் சம்பளம் கொடுக்கறதில்லை. जो उनके मामा लाबान ने उनको सही से वेतन नहीं दिए, 10 முறை சம்பளத்தை குறைத்தான். 10 बार उनके अजरा को बदल दिया. ஆனால் யாக்கோபு உண்மையாய் உழைத்தான். फिर भी याकूब ने सच्चाई के साथ वो मेहनत किया. ஒவ்வொரு முறை எஜமான் சம்பளத்தை குறைக்க குறைக்க जब जब उनके स्वामी मालिक अजरा को कम करता गया, பரலோகத்தின் தேவன் யாக்கோபை ஆசீர்வதித்து ஆசீர்வதித்து வந்தார். स्वर्गीय परमेश्वर याकूब को आशीष करते गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உங்கள் உழைப்புக்கு உங்க கம்பெனி சம்பளம் கொடுக்கும். आपका परिश्रम का फल आपका कंपनी देंगे, ஆனால் உன் உண்மைக்கு கர்த்தர் உனக்கு சம்பளம் தருவார். लेकिन आपकी सच्चाई का मजदूर परमेश्वर देंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சிலவேளை கம்பெனி சம்பளத்தை குறைவாய் தந்தாலும் हो सकता है किसी कंपनी ने आपको अजीरा को कम देते होंगे. நீங்கள் உழைப்பை குறைக்க வேண்டாம். आप लोग मेहनत को कम नहीं करना चाहिए. உண்மையாக உழையுங்கள். आप सच्चाई के साथ मेहनत करिए. கர்த்தர் உங்களை வெறுங்கையாய் அனுப்பவே மாட்டார். परमेश्वर आपको नंगे हाथ नहीं छोड़ेंगे. அதை விசுவாசிக்கிறீங்களா? विश्वास करते हैं? நீங்க மனப்பூர்வமா வேலை செய்யுங்க. आप ईमानदारी के साथ उसको करिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கூட வேலை பார்க்கறவங்க சொல்லுவாங்க, आपका साथ काम करने वाला आपको बहकाएंगे, இவங்க இவ்வளவுதான சம்பளம் தர்றாங்க, ये तो कम अजरा देते हैं, அதையும் ஒழுங்கா தர மாட்டேங்கிறாங்க, वो ज्यादा नहीं देते हैं, நம்மள போய் இப்படி வேலை செஞ்சா போதும். हम लोग हल्का फुल्का काम करने से काफी है. ஆனால் கர்த்தருடைய விசுவாசிகள் அப்படி செய்யக்கூடாது. लेकिन परमेश्वर के विश्वासी लोग ऐसा बेईमानी नहीं करना चाहिए. எஜமான்கள் உண்மையாய் நமக்கு செய்யாம இருந்தாலும் நாம் அவர்களுக்கு வேலையை உண்மையாய் செய்ய வேண்டும். हमारे मालिक लोग हमारे ऊपर अगर कोई सच्चाई से कुछ नहीं भी करे, पर हम ईमानदारी से करना चाहिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எஜமான்களுடைய கண்ணு பார்த்தாலும் பார்க்கட்டாலும் உண்மையா வேலை செய்யணும். मालिक लोग आपको देखे ना देखे, आत्मीय रहते समय ना रहते समय भी आप सच्चाई से काम करना चाहिए. ஏன்னா நம்முடைய மேனேஜர் சூப்பர்வைசர் பார்க்காம இருந்தாலும் கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். हो सकता मैनेजर बाबू साहब सब नहीं देखने से भी परमेश्वर देखता है. கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையா இருந்தால் கர்த்தர் உங்களை போஷிப்பார், நடத்துவார். परमेश्वर के सामने आप सच्चा ईमानदार से रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த எஜமாட்டி ஆகாரை வேலையிலிருந்து பிரித்து விடும்போது जब मालकिन ने अजरा को काम से निकाल दी है, அந்த ஆபிரகாம் வெறும் ஒரு துருத்தி தண்ணீரும் கொஞ்சம் அப்பமும் கொடுத்து அனுப்பி விட்டு लेकिन விட்டார். मालिक ने मात्र एक थोड़ा रोटी पानी देकर भेज दिया. 40 வருஷம் வேலை செய்தீர்கள், 40 साल आप मेहनत की है, 30 வருஷம் வேலை செய்தீர்கள், 30 साल आपने कंपनी में काम की है, ஆனால் உங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லை. लेकिन आपको नाम काटते समय कुछ भलाइयां नहीं मिला. உழைத்த உழைப்புக்கு சன்மானங்கள் கிடைக்கிறதில்லை. जितना मेहनत आपने की उसकी योग्य फल आपको नहीं मिला. கம்பெனியில ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தால் கூட कंपनी में इस प्रकार सुविधा होने के बावजूद भी அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ப்ரொசீஜர் மேல ப்ரொசீஜர் சொல்லி அலைக்கழிக்கிறார்கள், அலைய வைக்கிறார்கள். तो उसको पाने से धोखे के ऊपर धोखे देकर आपसे छीनते हैं, बेईमानी से दूसरा खाते हैं. ஆனாலும் நீங்கள் சோர்ந்து போகாதிருங்கள். फिर भी आप लोग उदास ना हो. அந்த ஆகாரை நேசித்தவர் உங்களையும் वो நேசிக்கிறார். आजिरा को प्रेम किया, परमेश्वर आप लोगों को भी प्रेम करता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆபிரகாம் கொடுத்து அனுப்பினது ஒரு துருத்தி தண்ணீர் தான். उनका मालिक ने एक थैली पानी देकर भेजा, ஆனால் கர்த்தர் அவளுக்கு ஒரு துறவையே लेकिन கொடுத்தார். परमेश्वर उनके लिए एक सोता की कुआं दिया. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். हालेलुया बोलिए. ஒரு சொட்டு தண்ணி கிடைக்காம தாகத்தோடு அலைந்த நேரத்திலே एक बूंद पानी की बिना तरस रही थी, ஒரு பெரிய ஒரு துறவையே கர்த்தர் காண்பித்து கொடுத்தார். परमेश्वर एक बड़ा पानी की सोता उनको दिखाया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. துறவுன்னு சொன்னா ஊறி ஊறி பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. उसकी वो सोता की अर्थ यह है कि वो उसमें उमड़ता बहता जाता है. அதான் கர்த்தர் தருகிற ஆசீர்வாதம். यही परमेश्वर देने वाला आशीर्वाद. ஊறி ஊறி பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். उनमें से बार बार उमड़ता हुआ बहता हुआ जाता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சோ பார்வோனால் அன்பளிப்பாய் வழங்கப்பட்டு விட்ட ஆகார் तो फिरौन से तोहफा के रूप में खरीदा गया
आजिरा। ஆபிரகாம் என்ற கணவனால் கைவிடப்பட்ட ஆகார், तो उनका पति अब्राहम के द्वारा त्यागी हुई एक आजिरा, சாராள் என்ற எஜமாட்டியினால் துன்பப்படுத்தப்பட்ட ஆகார். अपना मालकिन सारा के द्वारा दुख उठाया हुआ एक आजिरा, ஆனால் கர்த்தர் அவளை ஆதரித்தார். लेकिन परमेश्वर उनको तसल्ली दी, अपनाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவள் கர்ப்பவதியாய் இருந்த பொழுதும் கர்த்தர் அவளை ஆதரித்தார். वो गर्भवती थी, फिर भी परमेश्वर ने उनको रक्षा किया। அந்த பிள்ளையை வளர்க்கிற விஷயத்திலும் கர்த்தர் அவளை ஆதரித்தார். वो बच्चों को पालन पोषण करने का विषय में भी परमेश्वर उनको आदर किया। சில வசனங்களை மட்டும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். मैं कुछ वचनों को आपको याद दिलाऊंगा। ஆதியாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது उत्पत्ति पुस्तक 16वां अध्याय में पढ़ते हैं, 11ஆம் வசனத்திலே उनकी 11 वचन में, கர்த்தர் ஆகாரின் அங்கலாய்ப்பை கேட்டார் என்று சொல்லி இருக்கிறார். और यहोवा के दूत ने वहां पर देखते हैं परमेश्वर उनकी दुखों को देखा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பொழுது அவளுக்கு தேவனை பற்றி தெரியாது. उस समय परमेश्वर के बारे में उनको मालूम नहीं थी, அவள் ஜெபம் பண்ணவும் இல்லை. वो प्रार्थना भी नहीं की, ஆனா மனசுக்குள்ள பயங்கர அங்கலாய்ப்பு. पर मन ही मन में वो व्याकुल थी। சாராள் கடினமாய் நடத்தினால வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து விட்டாள். साराई ने वो कठिनता से उन पर उसके साथ व्यवहार करने के वजह से वो घर से भाग निकली। அந்த மனசுக்குள்ள இருந்த அங்கலாய்ப்பை பரலோகத்தின் தேவன் பார்த்தார். उनके मन ही मन में जो व्याकुल थे उन्हें स्वर्गीय परमेश्वर ने देखा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சில மனுஷங்களுக்கு சொன்னா கூட புரிய மாட்டேங்கி. कुछ लोगों को बोलने से भी नहीं समझते हैं। ஆனா இந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து, ये परमेश्वर यीशु, நீ சொல்லும் முன்னே உன் மனசுல இருக்கிறத அறிந்திருக்கிறார். आप बोलने से पहले आपकी मन की बातों को जानता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசிகள் ஒருபொழுதும் கலங்க கூடாது. विश्वासी लोग कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, ஒருபொழுதும் வருத்தப்படக்கூடாது. कभी भी दुखित नहीं होना நம்முடைய चाहिए। இயேசு நம்முடைய உள்ளத்தை அறிந்திருக்கிறார். प्रभु यीशु आपके मन की बातों को जानता है। அதே அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம். उसी अध्याय 13वां वचन में पढ़ते हैं, ஆகார் சொன்னா, என்னை காண்பவரை நானும் கண்டேன். तब यहोवा के नाम उसने कहा, जो मुझे देखा उसे मैं भी देखा हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। சாராளை விட்டு ஓடி வந்தாள். साराई को छोड़कर भाग निकला। சாராளுடைய கண்ணும் காணல, அபிரகாம் கண்ணும் காணல. सारा की आंखें नहीं देखे, अब्राहम का आंखें नहीं देखे, அவர்கள் தேடினார்களா என்றும் தெரியவில்லை. वे लोग उन्हें ढूंढा भी नहीं है, ஆனால் கர்த்தருடைய கண்கள் இவளை கண்டது. लेकिन परमेश्वर की आंखें उन्हें देखा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யாரும் என்னை காணாத நேரத்தில் கர்த்தர் என்னை பார்த்தார். कोई भी मुझे नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर की आंखों ने मुझे देखा। என் வேதனையின் வேளையில் கர்த்தர் என்னை பார்த்தார். मेरे दुखों के समय में परमेश्वर ने मुझे देखा। நம்முடைய கஷ்டத்தில் பலரும் கண்டும் காணாமலும் போவார்கள். हमारे कष्टों को अनेक लोग इस संसार में देखे अनदेखा करते हैं, ஆனால் கர்த்தர் நம்மை கஷ்ட நேரத்திலும் பார்க்கிறவர். लेकिन परमेश्वर हमें कष्टों का समय में भी देखता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அது மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு துருத்தி தண்ணீரை இழந்தவளுக்கு ஒரு துறவையே கொடுத்தவர். तो साथ एक तैली पानी जिसने खोया, उनको परमेश्वर एक सोता की पानी को परमेश्वर ने दिया। இங்கே ஒரு வார்த்தை சொல்லி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். यहाँ पर एक शब्द कहकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। தனக்கு கணவன் கொடுத்த துருத்தி தண்ணீர் காலியாகி விட்டது. अपने लिए उनका पति ने जो दिया पानी खत्म हो गया, ஆனால் கர்த்தர் அவளுக்கு ஊறுகிற துறவை கொடுத்தார். परमेश्वर उनको बहने वाली जीवित सोता को दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। நமக்கு பலவேளை உலக நன்மைகள் குறைவுபடுகிறது. हो सकता कभी संसार की आशीषें सुविधाएं आपके लिए कम पड़ सकता है, பணம் பொருள் செல்வம் குறைவுபடுகிறது. जैसे कि धन दौलत पैसे सुविधा कम पड़ सकता है, சுகம் சந்தோஷம் சமாதானம் குறைவுபடுகிறது. तो भलाई यानी कि चंगाई कम पड़ सकता है। வீட்டில் அது இல்லையே இது இல்லையே என்று வருத்தப்படுகிறோம். घर में ये नहीं है वो नहीं है करके आप दुख उठाते होंगे। என் குடும்பத்தில் நான் விரும்புகிறபடியான காரியங்கள் இல்லையே என்று வருத்தப்படுகிறோம். मेरे घर में मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कुछ नहीं है करके आप चिंतित होंगे। ஆனால் கர்த்தர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார். लेकिन परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा, பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுங்கள்,
கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது अगर इस संसार के आप लोगों ने दुष्ट लोगों ने अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हैं, பரமபிதாவானவர் நன்மையானவைகளை உங்களுக்கு தருவது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? स्वर्गीय पिता आपको अच्छा नहीं देंगे क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया। பரலோகத்தின் தேவன் நன்மைகளை நமக்கு தருகிறவர். स्वर्गीय परमेश्वर हमें भलाई को देना जानता है, கண்டிப்பாக தருவார். जरूर देंगे, தருவது அதிக நிச்சயம். वो जरूर देंगे। உங்களுக்கு உலக பொருட்கள் தேவையா? आपको संसार की आशीष की जरूरत है, கர்த்தரிடத்தில் ஜெபம் பண்ணுங்கள். प्रभु से प्रार्थना करिए, கர்த்தர் இதை தருவார் என்று விசுவாசியுங்கள். प्रभु ने ये देगा करके विश्वास करिए, அவர் அந்த நன்மைகளை உங்களுக்கு தருவார். वो आपको इस प्रकार भलाई करेंगे। உங்களுக்கு மனசுல சமாதானம் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிறதா? हो सकता है आपके मन में आनंद खुशी नहीं होगा, அந்த நன்மையானவைகளையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்தருளுவார். वो भलाइयों को भी परमेश्वर आपके लिए देंगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அது மட்டுமல்ல, वो मात्र नहीं है, தேவசனத்தை இயேசு சொன்னதை वचन को प्रभु ने जैसा कहा, லூக்கா சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே, लूका का सुसमाचार 13 का 13 वचन में, பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது दुष्ट जो व्यक्ति पर संसार में अपने बच्चों को अच्छा चीज देना जानता है, பரமபிதாவானவர் தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? स्वर्गीय परमेश्वर अपने से मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा? அல்லேலூயா, हालेलुया। நன்மையானவைகளை தருவார் என்று சொன்ன வார்த்தை मैं पहले जो भलाइयों को देंगे करके कहा, பரிசுத்த ஆவியை தருவார் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र आत्मा को देंगे बोलकर भी लिखा है। அப்போ பரிசுத்த ஆவியை பெற்றா எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கும். पवित्र आत्मा को अगर पाएंगे तो आपको बाकी सब भलाई मिलेंगे। இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நமக்காக इस संसार में जीने वाले हम और आपके लिए தேவன் தமது பரிசுத்த ஆவியை தருகிறார். परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को देता है। அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டோம் என்றால் वो पवित्र आत्मा को जिसने पाया, அவர் எல்லா நன்மைகளை தருவார். वो सब भलाइयों को देगा, எல்லா வரங்களை தருவார். हर वरदानों को भी देंगे। ஒரு சொட்டு தண்ணிக்கு ஏங்கி கொண்டிருந்த ஆகாருக்கு एक बूंद पानी की प्यास में तड़प रही थी आजिरा को, ஊறி ஊறி பாய்கிற வற்றாத ஒரு நீரூற்றை அவர் கொடுத்தார். एक ऐसा सोता को दिखाया जो हर समय बहता रहता है। அந்த நீரூற்று பரிசுத்த ஆவியை காட்டுகிறது. वो जो मैंने कि जो पानी की सोता था वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்தில் நன்மைகள் வற்றி போகிறதே இல்லை. पवित्र आत्मा के पास भलाइयां कभी कम नहीं होते, குறைவுபட்டு போகிறதே இல்லை. कभी कम नहीं होते। நன்மையான ஈவுகள் हर भलाइयां அவரை நாம் பெற்றுக்கொண்டால் அவரிலிருந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். उन्हें हम प्राप्त करेंगे तो उनके अंदर से प्रकट होता रहेंगे। பூரணமான வரங்கள், संपूर्णता की वरदाने பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வற்றாமல் தந்து கொண்டே இருப்பார். पवित्र आत्मा हमें बिना रुके देते रहेंगे। இன்னைக்கு நீ ஆகாரை போல மிகுந்த கஷ்டத்துக்குள்ள இருக்கலாம். आज हो सकता आप आजरा के जैसे बहुत बड़ी दुखों में रहते होंगे, ஆனால் கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையை உலக பிரகாரமும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமும் ஆசீர்வதிக்க சித்தம் கொண்டிருக்கிறார். तो आज संसार की रीति पर आत्मिक रीति से भी परमेश्वर आपको आशीष करना जानता है। ஒவ்வொன்றைக்காக கேட்கிறதை பார்க்கிலும் பரிசுத்த ஆவியை கேட்டு பெற்றுக்கொள்வது அதிக எளிது. आप हर चीजों को एक एक करके मांगने से भला की सब कुछ संपूर्णता से देने वाला पवित्र आत्मा को पाना और अच्छा है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு விருட்சத்தை ஒரு கனியை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். एक वृक्ष की फल को आप मांगते होंगे, ஆனால் அவர் அந்த விருட்சத்தையே உங்கள் வீட்டிலே தருகிறார். लेकिन परमेश्वर उस वृक्ष को ही आपके लिए देना चाहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்றைக்கும் உனக்கு அந்த கனி கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும். इस प्रकार हर समय आपको फल मिलता रहेगा। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। நிச்சயமாக கர்த்தர் அதை தர வல்லவராய். निश्चय परमेश्वर आपको वो देंगे। ஆகவே கர்த்தர் நிச்சயம் இன்று ராத்திரி உங்களில் அநேகரை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर निश्चय आज रात आप में से अनेकों को आशीष करना चाहता है। ஆகாரை போல உடைந்து சின்னபின்னமாய் போன வாழ்க்கையாக இருக்கலாம். हो सकता आजिरा के जैसे माने टूट कर छितर पितर हुआ जिंदगी क्यों ना हो। ஆனால் நீ இயேசுவை விசுவாசி. आपको यीशु मसीह को विश्वास करना होगा। இயேசு உன்னை இன்றை கரம் பிடிக்க விரும்புகிறார். यीशु आज आपके हाथ थामने वाले हैं। இயேசுவே நீங்க எனக்கு வேணும்.
यीशु आप मुझे जरूरत है, பரிசுத்த ஆவி எனக்கு வேணும் पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, என்று கேளுங்கள். ऐसा आपको मांगना है, ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். आशीष का कारण बनेंगे। இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். इस समय हम प्रार्थना करने वाले சில हैं। தேவைகளோடு பாரத்தோடு கஷ்டத்தோடு வந்திருக்கலாம். हो सकता है आप कुछ जरूरतों के साथ यहाँ आए होंगे। ஆனால் இன்றைக்கு நீ கேட்டதை மட்டுமல்ல, आज आपने जो मांगा उसको मात्र நீ नहीं, கேட்காத நன்மையின் ஊற்றையே கர்த்தர் உனக்கு தரப்போகிறார். आप नहीं मांगे वो जीवन की सोता को भी परमेश्वर आपको देने वाले हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க போகிறோம். विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हैं। எல்லாருக்கும் ஆறுதலை அவர் தரப்போகிறார். आप सभी जनों के लिए तसल्ली प्रभु देना चाहते हैं। முழங்கால் படியிடுங்கள். घुटने में हो जाइए, முழங்கால் படியிடுங்கள். घुटने में हो जाइए। எல்லாரும் ஜெபத்திற்கு ஆயத்தமாவோம். सभी लोग प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம். यीशु मसीह की ओर देखेंगे। இன்று ராத்திரி உங்கள் நடுவில் இயேசு உலாவிக் आज கொண்டிருக்கிறார். रात के समय आपके बीच में परमेश्वर मंडलाता है, ஆகவே நீங்கள் பயபக்தியோடு காணப்படுங்கள். इसलिए आप भय एवं भक्ति के साथ रहिए। இப்பொழுது பிள்ளைகள் முதல் பெரியோர் வரைக்கும் கண்களை மூடுங்கள். आज छोटे से बड़े तक सभी लोग आंखों को बंद करिए। தியானத்தோடு தேவனை நோக்கி பாருங்கள். ध्यान रूप परमेश्वर की ओर आप ध्यान दीजिए। முதலாவது உங்கள் வேதனைகள் வருத்தங்களை தேவனிடத்தில் பேசப் போகிறீர்கள். पहला आप ये करने वाले हैं कि आपके मन की दुख व्याकुलों को बताने वाले அது हैं। கர்த்தருக்கு தெரியும். ये परमेश्वर जानता है, ஆனாலும் நாம் மனம் திறந்து பேச வேண்டும். फिर भी हम मन खोलकर बात परमेश्वर से बात करना எல்லாரும் चाहिए। கொஞ்ச நேரம் பேசுங்க. सभी लोग थोड़ी देर बात करिए। என்ன வருத்தத்தோடு வந்திருக்கீங்க? कितना कौन सा दुखों के साथ आप यहाँ पर आए உன் हैं? மனதில் என்ன கவலை? आपके मन में क्या जो चिंता है? அதை மனம் திறந்து கர்த்தரிடம் சொல்லுங்கள். आप मन खोल कर परमेश्वर से कहिए। இயேசு அதை பொறுமையா கேட்பார். यीशु उसको अच्छा से सुनेंगे। உன் உள்ளத்தை அவர் பார்க்கிறார். वो आपके मनों को वो देखता है। உன் வீட்டுல உனக்கு பல கஷ்டங்கள் இருக்கிறதா? हो सकता है आपके जीवन में कई सारा कष्ट हो। உன் வீட்டிலே கஷ்டங்களா? आपके घरों में ही कष्ट है क्या? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. आप परमेश्वर से बोलिए, வாய் திறந்து சொல்லுங்க. मुंह खोल कर बोलिए। உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் ஸ்தோத்திரத்தோடு சொல்லுங்க. आपकी हर चिंता को धन्यवाद की स्तुति के साथ बोलिए। எல்லா உதடுகளும் திறக்கட்டும். सबके मुंह खोलने पाए, எல்லா உதடுகளும் திறக்கட்டும். सबके मुंह खोलने पाए। பேசுங்கள். बातचीत करिए। உள்ளத்தில் இருப்பதை இயேசுவிடம் சொல்லுங்கள். आपके मन में जो भरा है वो परमेश्वर से कहिए। இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆறுதல் உண்டாகும். आज आपको तसल्ली मिलेंगे, சமாதானம் உண்டாகும். आज आपको शांति मिलेंगे। உள்ளத்தில் கர்த்தர் கிரியை செய்வார். आपके मन के अंतर परमेश्वर कार्य ஒருவர் करेंगे। கூட பேசாமல் இருக்க வேண்டாம். कोई भी जो बिना बात किए ना रहना। வேலை பார்க்கிற இடத்துல கஷ்டங்களா? हो सकता काम करने का जगह में कष्ट हो, உங்களை இயேசுவிடத்தில் மனம் திறந்து சொல்லுங்க. प्रभु यीशु के पास मन खोलकर बातचीत करिए। பண கஷ்டமா? क्या पैसे की कष्ट है? சரீரத்தில் கஷ்டமா? क्या शरीर में कष्ट है? மனதில் கஷ்டமா? क्या मन में कष्ट है? ஆகாரை போல நீ ஒரு 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 மதிப்பில்லாம நடத்தப்படுகிறாயா? आजरा के जैसे बिना इज्जत दिए आप जिंदगी जीते हैं। சில பார்வோன்கள் தன் மனம் போல உன்னை நடத்தி கஷ்டப்படுத்துகிறார்களா? कुछ फिरौन लोग आपको अपना मनमानी करते हैं क्या? நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டவர்கிட்ட. आप कहिए परमेश्वर से। யார் யார் சொல்லுகிறீர்களோ இன்றைக்கு விடுதலை பெறுவீர்கள். जो जो कहते हैं बोलेंगे आप लोग आज आजाद இயேசு पाएंगे। இன்றைக்கு உங்கள் காரியத்தை பொறுப்பெடுப்பார். यीशु आज आपकी बातों को ग्रहण करेंगे। கணவனால் கைவிடப்பட்டீர்களா? अगर किसी पति से त्यागा हुआ है क्या? பெற்றோரால் கைவிடப்பட்டீர்களா? यदि माँ पिता आपको त्यागा है क्या? நீ வாய் திறந்து பேசுங்க. मुंह खोल कर आप प्रार्थना कर। கண்ணீரை இயேசுவின் பாதத்திலே ஊற்று மகளே. आंसुओं को परमेश्वर के पैरों पे उंडेल दे बेटी। உன் பெருமூச்சுகளை இருதயத்தை திறந்து இயேசுவிடத்தில் அனுப்பு மகனே. आहे भर भर के आप अपने मन की व्याकुलों को परमेश्वर को बताओ प्रिय भाई। உன் அங்கலாய்ப்புகளை சொல்லு.
आपकी वेदनाओं को बताओ। இயேசு இன்றைக்கு ஒரு பெரிய கிரியை உனக்காக செய்ய போகிறார். परमेश्वर आज आपके लिए बड़े काम करने चाहते हैं। சாராள் போன்ற எஜமாட்டிகள் கடினமாய் நடத்துகிறார்களா? आपके मालिक और मालकिन आपको कठिनता से चलाते हैं क्या? மாமியார்கள் மருமகள்கள் கடினமாய் நடத்துகிறார்களா? सास ससुर या बहू आपको कठिनता से आपके साथ व्यवहार करते हैं क्या? எதையும் மறைக்காமல் இயேசுவிடம் பேசுங்கள். कुछ भी बिना छिपाए आप प्रभु से प्रार्थना करें। இயேசு உங்களுக்காய் ஒரு பெரிய காரியம் செய்ய போகிறார். यीशु आपके लिए एक बड़े काम करना चाहते हैं। கண்ணீரை இயேசு துடைக்கிறார். आपके आंसुओं को परमेश्वर पोंछना चाहता है। यीशु மாற்றுகிறார். आपकी मन की वेदनाओं को प्रभु दूर करते இயேசுவே हैं। உங்க கரத்தை நான் பிடித்துக் கொள்ளுகிறேன். हे यीशु मैं आपके हाथ थामा हूँ। ஒருபோதும் கைவிடாத கர்த்தர், मुझे कभी भी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, எனக்கு இரங்கும் தகப்பனே, मुझे मेरे लिए दसली कर प्रभु, எனக்காக நீர் பேசும் கர்த்தாவே, मेरे लिए मेरे से बातचीत कर परमेश्वर, எனக்காக சில கிரியைகளை செய்யுங்கப்பா. मेरे लिए कुछ क्रियाओं को करिए। ஒரு பிள்ளையை போல கூப்பிடு. एक बच्चे के जैसे आप परमेश्वर से प्रार्थना कर। தகப்பன் உனக்கு அற்புதத்தை செய்வார். परमेश्वर आपके लिए भला करेंगे। உன் வாழ்க்கையின் வறுமை மாறும். आपके जीवन की कठिनताएं बदलेंगे। உள்ளத்தின் வேதனை நீங்கும். आपके मन की वेदना दूर होंगे। கர்த்தர் உன்னை காண்கிறார். परमेश्वर आपको देखता அந்த है। கர்த்தரை நீயும் இன்றைக்கு அனுபவிக்க தொடங்கு. ओ परमेश्वर को आज आप भी जीवन से महसूस करें। விசுவாசத்தோடு विश्वास के இயேசு साथ இப்பொழுதே ஒரு கிரியை செய்கிறார். यीशु इसी समय अपना உங்க कार्य प्रकट करता है। வேலை ஸ்தலத்துல ஒரு கிரியை செய்கிறார். वो आपके काम के स्थान में प्रभु काम करते हैं। உங்களுடைய குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு கிரியை செய்கிறார். आपके परिवार के बीच में परमेश्वर உன் कार्य வேதனை करते அவர் हैं। காண்கிறார். आपके दुख वेदनाओं को देखता है। கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறீர்கள். कुछ लोग आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं। கண்ணீரை கர்த்தர் பாதத்தில் விடு மகனே மகளே. आपके आंसुओं को परमेश्वर की चरणों में उंडेल दे। அந்த கண்ணீருக்கு ஒரு பெரிய பிரயோஜனம் வரப்போகிறது. आपके आंसुओं का बड़ा प्रतिफल है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया हालेलुया। பரிசுத்தாவி பெற்றவர்கள் ஆவியில் நிறைந்து ஜெபிக்க போகிறோம். पवित्र आत्मा की वरदान पाए हुए लोग आमीन अन्य भाषा में भर के प्रार्थना अन्य करें। भाषाகள் பேசுங்கள். ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। ஆவியானவர் கிரியை செய்கிற நேரம். परमेश्वर आप कार्य करेंगे। இயேசுவின் நடுவிலே உலாவுகிற நேரம். परमेश्वर आपके बीच में कार्य करेंगे। கொள்ளத்தக்கதாக प्राप्त करने के लिए கொள்ளத்தக்கதாக प्राप्त करने के लिए விசுவாசத்தோடு கூப்பிடுங்கள். विश्वास के साथ पुकारे। Glory, hallelujah. Glory to Jesus, हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। आमीन। यहाँ कोई त्यागे हुए क्यों ना हो, यहाँ के ऐसे लोग हो जो दुख भरा दिलों के साथ। Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमेन शदरबन कंथनिया। प्रभु आपके विनती विचारों से बढ़कर करने वाले हैं। हो व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। ओ मेरा यीशु साथ देगा, बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तो देखेगा। प्रभु करेगा काम नया, अब तो देखेगा। अब तो देखेगा, अब तो देखेगा। ताली बजा के व्याकुल ना होना,
व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल। मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रें आंसू दुख सब हर लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे दुख फिक्रें हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। पावन हृदय चाह रहा, केदित मन को ताम रहा, पावन हृदय चाह रहा, केदित मन को ताम रहा, गाँव मेरे सब बांध रहा, आंसू पोंछ रहा, गाँव मेरे सब बांध रहा, आंसू पोंछ रहा, आंसू पोंछ रहा। ताली बजाकर मिलकर बोले, आंसू पोंछ रहा। व्याकुल ना होना, व्याकुल हो। पवित्र आत्मा आज लोगों के साथ बात किया है, आपके मन के दुखों को बदल कर पावने यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु ओ सहन के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहन के बाहर कष्टों में तुम्हें कभी न छोड़ेगा, सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा, सहने की शक्ति दे, ओ बचने की राह देगा, राह निकालेगा, तेरे लिए राह निकालेगा। बोले मिलके मेरे लिए राह निकालेगा, मिलके बोले राह निकालेगा। ओ व्याकुल ना होंगे, व्याकुल ना होंगे, व्याकुल नहीं, व्याकुल ना होंगे। शबा रबा रदा रचम तेरे, मेरा यीशु लेगा, मेरा यीशु, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु, 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 मेरा यीशु थाम लेगा, मेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा, मेरे गम सब खुशी में बदलेगा। सब अंगीकार कर मुझसे, मेरे दुख, मेरा कष्ट, मेरे गम सब, मेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना रोना ना बेटे, एक हमारा दरा मचादर तेरे आंसू प्रभु यीशु के नाम से आज से छोड़ने पाए, हमारा रोना ना बेटे,
पोषने वाला परमेश्वर, पति के द्वारा कष्ट देने वाले लोगों को प्रभु आज ओ कुशल की मार्गदर्शन पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, ओ बेटी बातों को बिछा दे उन पर रोना। आज प्रभु का वचन की सामर्थ मेरे को सोने दे। प्रभु करेगा काम नया, अब तो देखेगा, अब तो देखेगा। व्याकुल ना होने, व्याकुल ना होंगे, व्याकुल होंगे, ना होंगे। मेरा यीशु काम लेगा, हालेलुया, हालेलुया। आज अनेकों के दुखों को देखा परमेश्वर, ओ दुखों के अंत करने बाद, ओ भीतरी भाग्य विजय करने बाद, यीशु के नाम से ताली बजाते परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आजरा की आंसू को देखा परमेश्वर, आज आजरा की हृदय की दुखों को देखा परमेश्वर, उनके जीवन को देखा परमेश्वर। आज तेरे मन की गहराई को देखा परमेश्वर। सहने से बाहर कष्टों में कभी ना छोड़ता परमेश्वर। सामर्थ आने पाए लोरे शाबारा दादा दादा खंतरे। हालेलुया, जीसस मेरा यीशु। हालेलुया। सभी हृदय की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का सामर्थ हमेशा के लिए है। हो जीसस, निश्चय हमारा उम्मीद है। आजरा को देखा, आजरा के जैसे अगर मैं हूं तो मुझे भी प्रभु आज रात देखा। इसी घड़ी प्रभु ने मुझे देखा। हो नई मार्ग निकालेगा। जीसस, सहने से बाहर कष्टों बोलकर तो सोचता है। आप मन मन में ये सोच के आया, मैं सहने से बाहर मुझे कष्ट क्यों? लेकिन परमेश्वर ये कष्टों के रूप में नहीं, बल्कि आपका नई उम्मीद और शुरुआत के रूप में प्रभु देखता है। तेरे आंखें अब नई आनंद की सोता को देखेंगे। हो जीसस, जो आपके घरों में उमड़ने वाला है। इस भविष्यवाणी शब्दों को विश्वास करने वाले धन्य हैं। इस सभा से जाते समय तो अपने घर में एक आनंद की उमड़ता हुआ सोता को देखोगे, जो परिवर्तन का कारण बना। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। हो जीसस, जीसस, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। प्रभु ने हमसे बातें की, अच्छे परामर्शों को वचन की ओर से भेजा, पवित्र आत्मा कार्य किया। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं।
यहाँ हाजिरा के जैसे अनेक लोग हैं, आपकी आंखों ने उन्हें देखा, जिसकी परवाह उनकी पति नहीं किए, जिसकी परवाह उनके पत्नी नहीं की, पर उनकी परवाह स्वयं आप करते हैं, स्वयं आप करते हैं। विश्वास के साथ यहां भेज, इस सभा में एक नया उम्मीद लेकर आए हुए लोगों को लौटते समय उस उम्मीद की स्थिरता को, आंखों को देखने की प्रभु तू मदद कर। इस उम्मीद की असलियत को परिवारों में देखने की मदद कर। जो अपने मन में जो कल्पना देख रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, बदलाव को देख रहे हैं, हकीकत जल्द वे अपना जीवन में देखने पाए, तो ऐसे अनुग्रह कर। इस कन्वेंशन के दूसरे पहर प्रभु आप यहां अपने लोगों के इकट्ठा करके आनंदित कराया, मैं तेरे धन्यवाद देता हूं। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। पवित्र आत्मा आप जैसे चाहा हमारे बीच में वैसे किया, धन्यवाद। हमने आशीष और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की तू मदद कर। विश्व लगातार कन्वेंशन को आशीष कर तेरे हाथ में समर्पण करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन। आशीर्वाद, पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति, सौभाग्यता हम सबके साथ, सभी पवित्र लोगों के साथ उनके आगमन तक होती रहें, आमीन।